तो ठीक है, मैं एक बार केस को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलेगा? One, so 1 second. यस यस। On this very auspicious day that marks the event of birth anniversary of Dr. Mohanty sir, I would love to welcome all the delegates and all the great mentors we have here on this platform of Insight Group. Even though our generation or we doctors who are new here, we never had the privilege or the opportunity to meet Dr. Mohanty sir. But we are very lucky that we have been guided directly or indirectly by the great soul, because we have great mentors who hold and carry the torch of knowledge very high. Those who have been directly connected to sir have been learning through sir's highly inspirational and motivational lectures. So we are very much highly indebted to our beloved mentors who guide us on daily basis. So I take the privilege of welcoming Dr. Bhagwat Tumale sir on this auspicious day. I bow down to all the mentors that inspire us and tickle up our dull brain cells. Especially there are mentors who would love to do it all the things in sarcastic ways, and I personally appreciate these things. And sometimes what happens, due to our setbacks, we deny. We are in the process of denying things. We procrastinate a lot. We procrastinate too much. And we go down sometimes due to some laid back attitudes and some setbacks background of our lives. So whenever there is an inspiring source of light or a soul that strives day and night selflessly with all the efforts to build each one of us and stabilize and motivate each one of us here. So personally, I welcome all the delegates and doctors here once again. And Bhagwat Umale sir has got a great sync with subtle sarcastic way. He tries to inspire us, and okay, we'll still try to catch up with the mentors. Multi-talented, brainy shots. The shots are such that you need guts and grit to get them personally and in the groups. Okay, sir. Thank you once again and Thank you. welcome once again. Thank you, Thank you everybody. अनुपमा जी, थैंक यू अनुपमा, वेरी नाइस और एक्सपीरियंस वर्ड। और आज Well, का जो केस है, आज का जो केस सर ने दिया है, बहुत बढ़िया केस है। और ये केस के लिए सर ने कम से कम 18-19 घंटा मेहनत किया है एक केस के ऊपर, मतलब स्टडी, उसका पीपीटी, ये वो सब। तो बहुत बढ़िया है, लर्निंग हो जाएगा। जस्ट आप थोड़ा सुन लो और सर से, ये आज का जो दिन है, ये बहुत स्पेशल दिन है और बहुत अच्छा लर्निंग होगा। तो थैंक यू अनुपमा जी, एंड सर स्टार्ट योर सेशन। Thank you, Anupam, for these nice words, and you have touched every points. So thanks a lot for your nice words. ठीक है, अगर आप वीडियोस ऑन करके अगर रहते थे तो ज्यादा बेटर लगता था। Yes, the way of Sir Mohanty sir was very special. दैट वाज वेरी स्पेशल। मतलब वो सर का एक स्टाइल रहता था, वो पेशेंट के साथ में भी जब बात करते थे ना, मतलब दैट वाज आल्सो द सार्केस्टिक वे। तो कल परसों ही ऐसा ही एक केस हुआ और बहुत ही मजेदार केस था, एंड द रेमेडी वाज क्वाइट श्योर। और वो रेमेडी देने के बाद में मेरे पास में 200 वनएम पोटेंसी नहीं था। स्टिल जैसे ही मेडिसिन दिया उसके बाद में उसको 30 to 40% एक 10 to 15 मिनट्स में आराम हो गया। तो सर का जो मेथड था एक्चुअली, ये जो है सही में अगर देखे जाए तो दैट वाज अ नाइस मेथड। कि सर ऐसे बातों बातों में ही पेशेंट के साथ में चलते चलते ही दवाई निकाल लेते थे। दैट वाज बेस्ट थिंग ऑफ द सर। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर के साथ में, कि सर मतलब जस्ट 2 मिनट में केस हो जाता। मैं बोला हो गया सर केस, हाँ हो गया। सर का यही बोलना था कि द वे द फर्स्ट थिंग यू थिंक you have to ask something to the patient, but at that time the case has been closed already. ठीक है, just collect the words
and you have to just sit back and think over these points, what the patient has said and what might be the intention behind his. तो ये जब चीज इतना आसानी से सर ने बोला क्या, तो जैसे ही कुछ पेशेंट बोलता है तो मैं बस बैठ जाता हूँ, शांति से सोचता हूँ कि यार इन्होंने क्या बोला, क्यों बोला होगा, कैसे बोला यार, वे ही वॉज टॉकिंग, तो उसका रिएक्शन पैटर्न कैसा है, एडेप्टेशन पैटर्न कैसा है, कंसर्न क्या है, ये सब चीजें सोच के मैं सर के साथ में मतलब बहुत दिन तक रहा हूँ एक्चुअली। तो बहुत अच्छा लगता था जब सर के साथ में, जब सेमिनार्स में जब पेशेंट्स देखते थे हम, तो दैट टाइम ऑल्सो द मतलब सर का जो वे रहता था, मतलब दैट वाज अ काइट एस्टोनिशिंग। तो एक ऐसे ही केस था मेरा, तो सर के पास में रेमेडी दिया मैंने, तो सो केस को दिया और सर को बोला सर ये केस है, तो बोले मुझे सर ने दे दिया केस, और फिर बाद में बोला इसको पल्सटीला पल्सटीला दे दे। तो सर पल्सटीला तो दिया हूँ, तो मुझे पता है बोले तूने पल्सटीला दिया है, लेकिन द पोटेंसी यू हैव सिलेक्टेड दैट इज रॉन्ग। तो फिर सर का प्रिस्क्रिप्शन देखा, द प्रिस्क्राइब पोटेंसी वाज 0/1 LM पोटेंसी दिया था सर ने। तो मुझे तब पता था बोले कि इतना आसान केस, इतना छोटा सा केस है, तेरे ध्यान में आ जाएगा, लेकिन तू पोटेंसी डेफिनेटली मिस करेगा ये अगर केस मेरे पास में आए। तो मतलब सर का प्रिसीजन इतना सही होता था, पोटेंसी के बारे में बहुत जबरदस्त होता था। तो सर ने एक पैटर्न भी हम सब लोगों के लिए है, पहले आप 30 दो, 200 दो, 1M दो। अब 30 जब देते हो उसके बाद में रिजल्ट मिलता है, कुछ दिन के बाद में थोड़ा सा रिलैप्स बैक होता है, तो 0/, उसका वाटर डोज दो। फिर नहीं जमता है तो 200 दो, फिर 200 का वाटर डोज दो, फिर 1M दो, फिर 1M का वाटर डोज दो, और उसके बाद में फिर अगर रहता ही है, कुछ लगता ही है, तो उसके बाद में देन यू गो फॉर द LM पोटेंसीज। तो ये सिंपल सर का फंडा था। तो अभी तो हम प्रिस्क्रिप्शन में मतलब पोटेंसी के मैनेजमेंट में काफी अच्छे से बढ़ गए हैं, सभी इंसाइट का सभी लोग, ठीक है। तो हम अभी आजकल हम 30, 200, 1M कौन सी लेवल पे कौन सी पोटेंसी सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब चीज हम सब लोग। लेकिन जो भी कोई बेसिक है जिनको पोटेंसी का यूज करने नहीं आता है, तो ये पैटर्न इस्तेमाल कीजिए, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गो फर्दर इनटू द केसेस, ठीक है ना। मतलब ये सर का सीधा सीधा गाइडलाइन है रिगार्डिंग द पोस्टोलॉजी। चलो, थैंक यू अनु मामा, थैंक यू जनार्दन सर। और आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, तो मतलब ये लगाने में, टाइमिंग लगाने में, तो सब लोगों को वेट करना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सॉरी, लेकिन थोड़ा नहीं, पूरा ही सॉरी। तो फिर जब ये पेशेंट मेरे पास में आया, तो मैं उसको बोला कि यार मतलब आप मतलब तकलीफ क्या होती है आपको, तो मतलब शरीर में, पूरे शरीर में, जैसा पेट में जैसे आग लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार पूरे शरीर में ऐसे आग जैसा महसूस होता है। तो मैंने बोला कि हाँ, और बताओ, और सिर ऐसे लगता है कि जैसे मतलब किसी ने कसकर बांध दिया हो, जैसा टेंशन सा रहता है, डॉक्टर बोला। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो मरीज बोला मान लीजिए कि कोई काम करने गया कहीं पर भी, तो मन नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होती करने की। तो मैं बोला कि यार उसको, हाँ ठीक है, ये गर्मी की वजह से है ना। तो मरीज बोला और अगर एकदम से काम करने लगूं तो ऐसे बहुत सारा काम कर डालूं। तो मतलब जब, मतलब पहले तो काम करने की इच्छा नहीं होती है, और जब काम करने जब लग जाता हो तो ऐसे लगता है कि बहुत सारा काम कर दो। तो मैंने बोला कि हाँ, आंखों के सामने ऐसा लगता है कि जैसे चार चार चीजें दिखती है। तो मैंने उसको बोला यार इतना नहीं तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट बोला हाँ, और पेट में ऐसे लगता है कि जैसे कुछ तो भी बॉयलर चल रहा हो, ऐसे ही महसूस होता है। मैंने बोला कि यार क्या नींद ज्यादा आती है क्या, बोले गर्मी से नींद, हाँ पर नींद बहुत आती है, ऐसे लगता है कि सोता ही रहो। मैंने बोला क्या, मैं फिर उसका नाम पूछा, फिर उसने नाम बताया, उम्र कितनी है, तो 29 उसकी उम्र थी। उसके बाद में ठंडा खाने पर कैसा लगता है, तो मैंने उसको बोला, तो ठंडा खाने पर एकदम बहुत अच्छा लगता था। तो और ये सब चीजें जब तकलीफ होती है, तो ये सभी चीजें कब से शुरू हो गई। तो पेशेंट ने बोला ये काफी सालों से, मतलब गर्मी की समस्या है, लेकिन अब ज्यादा लग रही है। तो मैंने बोला कब से ज्यादा लग रही है, तो बोले करीब 1.5-2 साल हो गए। तो 1.5-2 साल पहले मैंने उसको पूछा कि यार कुछ ऐसे हो गया है कि जिसकी वजह से आप परेशानी में थे, कुछ टेंशन में था। तो बोले "नहीं, जिंदगी में टेंशन वगैरह तो कुछ नहीं था। तो ऐसे मतलब उसने फिर अचानक में चालू कर दिया कि किसी से नजर मतलब मिलाई तो ऐसे लगता है कि आंखों में मतलब पानी आ जाता है। पता नहीं गर्मी है क्या, मालूम नहीं, पर नजर मिलाई तो एकदम सडनली पानी आने लगता है। तो मैंने सोचा कि चश्मा लगा के दे, लेकिन चश्मा भी फेल हो गया है। तो
बोला कि यार पिछली बार भी आए थे क्या आप? तो बोले हाँ पिछले महीने आया था, पर शाम के टाइम पे आया था, लेकिन क्लिनिक बंद था। तो सुबह सुबह दौड़ने, तो वो पेशेंट बोलता कि मैं ना डॉक्टर साहब सवेरे सवेरे दौड़ने वगैरह जाता हूँ, तो जब रनिंग वगैरह मारी तो एकदम शांत और जबरदस्त लगता है। तो मतलब जैसे क्या होता है ना कि रनिंग में गए ना, तो ऐसे ऐसे लगता है कि पूरे शरीर के अंदर की गर्मी निकल गई। तो थोड़ा और फिर बाद में जब अच्छा लगता है, तो लेकिन थोड़ा सा आराम से बैठ गया है तो फिर से शरीर जो है ना वो गर्म होने लगता है। तो मैंने उसको पूछा कि यार आपका स्वभाव कैसा है? बोले सर स्वभाव मेरा शांत है। मैंने बोला एकदम शांत? तो बोले नहीं, ज्यादा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने बोला यार मुझे एक बात बताइए, 3 साल पहले आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी घटनाएं चल रही थी कि जिससे आप परेशान थे? तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन उस समय मैं स्पर्धा परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहते हैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो स्पर्धा परीक्षा की, तो बोले हाँ पीएसआई एसटीआई की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि यार उसमें क्या आपको मतलब सफलता नहीं मिली? तो बोले नहीं नहीं, सफलता तो नहीं मिली मुझे। फिर मैंने वो छोड़ दिया, कोरोना के समय से छोड़ दिया। तो मैंने बोला यार उसके बाद से आपको ये तकलीफें शुरू होगी? बोले हाँ मुझे मतलब वहीं से ये तकलीफें चालू हो गई, लेकिन इतनी नहीं थी। आंखों में तभी 5 साल से ये तकलीफें चल रही है। तो डॉक्टर के पास गया, चेकअप किया, पर कुछ खास नहीं निकला। तो मैंने उसको पूछा कि यार अभी आप क्या करते हो? तो बोले सर मैं खेती करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ कि यार ये जो बंदा है वो पहले मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अभी ये खेती करता है। तो मैंने बोला यार ये खेती का, तो मैं मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ था। तो घर वाले क्या कहते हैं? मैंने बोला वो बोलते हैं कि शादी करो, और शादी नहीं करते तो खेती में तो भी मन लगाओ, बस यही तक करना है। तो तुम्हारे जो, तो उसने क्या किया कि वह बाकी के जो दोस्त वगैरह जो थे उसके बैच के, तो वो जो बैच के जो दोस्त है वो कुछ मतलब अच्छे पोस्ट पे चले गए, और कुछ कुछ जो है वो रह गए अपने जैसी पोजीशन में थे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला "यार, अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज का है आपकी जिंदगी में?" तो बोले अभी खेती का तनाव ज्यादा रहता है, और दूसरा ये लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, घर वाले भी सभी जल्दी से करती है यार शादी से जल्दी कर दो, ऐसे खेती भी जो है वो खेती कर या तो फिर शादी कर दो, वैसे कुछ तो भी अच्छे से कर दो। तो फिर चिड़चिड़ होती है, इच्छा होती है कि यार कहीं चले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। तो पर वहां पे जाने के बाद मतलब, तो क्या बोलता है कि जब भी अभी लड़की देखने के लिए जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं कि, लेकिन वहां पे जाने के बाद में मतलब अच्छा लगता है। मैंने बोला यार मतलब उसका सिचुएशन ऐसे है कि जब वो लड़की देखने के जाने से पहले उसको थोड़ा सा ये होता है, लेकिन जब वो लड़की देखने के लिए जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो मतलब यार तो मैंने उसको वो पूछा और आगे की बार कि यार आजकल मतलब उसको एक आदत सी हो गई कि अभी जो काम है ना उसको थोड़ा सा टालने का आदत हो गया। तो इसकी, तो मतलब ये जो गर्मी वगैरह जो होती थी उसको, तो उसकी वजह से उसने जो पहले जो खाना पीना जो था, अंडे वगैरह जो थे वो भी बंद कर दिया। और उसके बाद में उसको रात भर नींद नहीं आती है, तो वो गर्मी की तकलीफ से तो उसने जो जो गर्म चीजें खाना था वो भी सभी चीजें बंद कर दिया। उन्होंने उसको बोला कि यार मतलब जो लाइफ में जो मजा जो था वो सभी सभी खत्म हो गया। तो उसने बोला कि मतलब एक तुम्हारी जिंदगी जो है ऐसे जस्ट एक जो एक कोल्लू का बैल रहता है, मतलब घानी का बैल जो रहता है उसकी जैसी बोले, बस वही हो गया डॉक्टर साहब। काम करो, खाओ पियो और सो जाओ। जब आप परीक्षा की तैयारी करते थे तो वो टाइम पे हाँ डॉक्टर साहब बहुत मजा आता था, लाइब्रेरी में जाते थे, इधर से उधर मतलब ट्रैवलिंग बहुत होती थी, घर से निकलता था तो ट्रेन पे जाओ, ट्रेन से वहां पे जाओ, लाइब्रेरी में बैठो दोस्तों के साथ में, मजे मस्ती करो, उसके बाद में पढ़ाई वगैरह करो, उसके बाद में फिर से वापस आओ घर पे। और ये अभी जस्ट कोविड के बाद में ये जो जिंदगी जो है ऐसे कुल्लू के बैल के जैसे हो गई। तो मैंने उसको बोला कि चलो अभी एक आपको एक दवाई दे देता हूँ, और उससे आपको ठीक लगना चालू हो जाएगा। तो दिस वॉज द केस। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब रेमेडी जो है वो क्रैक किया, क्योंकि इधर उधर से उनको पता चल गया था कि यार ये केस जो है वो मतलब उसका रेमेडी कैसे किधर से कहाँ से वो चुरा चुरा के, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली रिस्पॉन्ड किया है केस को, जिनको दवाई पता नहीं थी। तो आपने क्लू दिया उनको, हाँ ये ये तो। क्लू तो, हाँ तो दैट वाज अ क्लू, क्योंकि आज कैसा था कि बहुत सारा मतलब गड़बड़ थी, तो उसकी वजह से मैंने लास्ट वाला जो पार्ट था वो कट करने का भूल गया था।
और वो जो कट करने का भूल गया था, इसीलिए सब लोगों को वो जो रेमेडी जी थी वो थोड़ी सी क्रैक करती भी आई। और बहुत सारे इधर उधर से सेमिनार में कौन सा केस लिया था वहां से उनको दवाइयाँ मिल गई। तो कोई इशू नहीं है, दवाई क्रैक करना तो एक पार्ट रहता है, दैट इज अ फन पार्ट, जहाँ से हम हमारे दिमाग को चलो थोड़े से घोड़े दौड़ा सकते। लेकिन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया इसका, और काफी लोग जो है वो दवाई की तरफ काफी अच्छे से पहुंच गए हैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली द रेमेडी वाज, हेलो, ऑल नो, द रेमेडी वाज, प्लम्बम Colombo or Polyphos. प्लम्बम सो द रेमेडी वाज प्लम्बम मेड। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हम प्लम्बम मेड को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो रेमेडी तो पता चल गई, तो अभी थोड़ा सा जर्नी जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सब लोगों का कि यार दवाई समझने का। ठीक है। तो ये तीन लोग हैं जिन्होंने हमारे जिंदगी को काफी अच्छी तरह से संवारा है, शेप दिया है। मोहंती सर से बहुत अच्छी तरह से, मतलब दैट वाज अ फादरली फीलिंग। और बहुत बार मार भी खाते थे। राव सर से कभी मार नहीं खाई, राव सर से फिर प्यार से गाली खाई, लेकिन मोहंती सर से कभी कभी मार भी खाई। तो टकली तो बहुत बार मिलती थी, है चल हट पट्टी पगली कुछ भी बोलता है क्या, तो ऐसे बहुत बार मार खाए। तो मोहंती सर का मतलब ही वॉज लाइक अ फादर। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन इनसे मिला है। अभी जो केस प्रेजेंटेशन के दरमियान जो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन वे जो मिलता है, ये सर से मिला है गिफ्ट। राव सर जो थे मतलब जस्ट लाइक मदर। तो राव मास्टर का कभी भी हमेशा के लिए प्यार ही रहा। रात को 12 1 2 बजे भी फोन किया तो सर ने उठाया। कभी कभी ऐसे होता था कि सर को नींद लग जाती थी, फिर रात को 3 बजे सर जब भी उठते थे देखते थे इसका फोन आया। सर फोन लग क्या हो गया था, मतलब कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तो अब आ रही है ना, मतलब हाँ वो आ गई, तो चल सो जा। मैं दूसरे को फोन करता हूँ। ठीक है। और गुप्ता सर का एक था कि एक जो एक सही में एक सटीक टीचर जो होता है ना, मतलब अगर कहीं मिस्टेक्स हो जाती है तो एक वर्ड का भी मिस्टेक्स होता है तो गुप्ता सर को सहन नहीं होता। ठीक है। तो जस्ट एक मदर फादर एंड टीचर, तो ये तीनों लोग से इतनी चीजें भर भर के मिला है। सो अभी जितना सारा जो कुछ प्रैक्टिस में है, जो लोग आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, तो यही सब जब ये तीनों का रिफ्लेक्शन जो है वो वहां पे आपको मिल जाता है। तो मेरा सब कुछ मतलब कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ जो है वो इन सब लोगों का है। सो थैंक्स टू दिस ऑल मास्टर्स, ठीक है, हु हैव शेप्ड माय लाइफ। आई शपथ, अरे ये पीपीटी कौन सा लग गया है। चलो दूसरा पीपीटी शेयर करते हैं।
तो मिल गए। सो ठीक है। सो सर का एक टीचिंग का एक मेथड था, ठीक है ना। तो मेथड ऐसे था कि सर क्या करते थे, सिम्टम्स को देखते थे, फिर वहां से सिम्टम्स का एक पैटर्न देखते थे, पैटर्न से फिर वो इनर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते थे और सीधा सीधा उसको रेमेडी का थीम जो है वो हमारे सामने लेके आते थे, ठीक है ना। तो सर का बोलना था कि यार सिम्टम जो है वो एग्जिस्ट क्यों, सबसे मेन चीज क्या है कि यार सिम्टम्स का वो पेशेंट्स के लिए मीनिंग क्या है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आर्थराइटिस होगा, तो आर्थराइटिस को कोई बोलेगा कि सर मेरे को दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, कोई आर्थराइटिस के लिए बोलेगा कि सर मेरे को ना उठक बैठक करने में जो तकलीफ होती है वो ज्यादा परेशानी वाली है। तो सर ये अभी ऐसे हो रहा तो आगे चल के कैसे होगा। तो ये ईच एंड एवरी सिम्टम्स का मीनिंग वो पेशेंट्स के लिए अलग होता है। तो हमें कभी भी समझना है कि पेशेंट ने अगर सिम्टम्स बता रहा है तो उसके पीछे का उसका मीनिंग, उसका इंटेंशन, उसका कंसर्न क्या है उसको समझो। और फिर बाद में कि ये जो कुछ अंदर उसके स्ट्रगल जो कश्मकश चलती है उसको लेके, तो वो कश्मकश किस तरह से चलती है और वो क्या रिफ्लेक्ट करती है हमारे साथ में, तो वो चीज को समझना होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सब्जेक्ट द रूटीन प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम द डीप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। तो क्या होता है ना कि हमारा एक रूटीन प्रिस्क्रिप्शन होता है कि यहाँ चलो ये आ गया ऐसे पैटर्न है, तो ये सिंपल सिंपल ऐसे वैसे वैसे देखना है, बेलाडोना ऐसा रहता है, पल्सटिला ऐसे रहता है, आर्सेनिक ऐसा रहता है, वैसा रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि यार फिर बाद में जब हम रेमेडी दे देते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब जाके हमें समझना आता है कि यार इसको लेके भी अलग से कुछ तो भी थिंकिंग हमें करना पड़ेगी। तो रूटीन प्रिस्क्रिप्शन से डिसकॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है दैट इज ऑलवेज डिफरेंट। सो इफ यू रूटीन एनालाइजिस केसेस लाइक द मेटाफर प्लस लाइफ स्टोरी प्लस रेमेडी सेंस, तो यहाँ पे जो होता है आपकी जो है वो रेमेडी जो सिलेक्ट होती है वो सही तरीके से सिलेक्ट होती है। मतलब क्या होगा कि पेशेंट जब बताएगा हमें, तो वो जो कुछ सेंटेंसेस जो वर्ड्स यूज करेगा तो उसका मेटाफोरिकल मीनिंग हमें समझना है, उसके साइड बाय साइड उसकी लाइफ स्टोरी को समझना है, फिर लाइफ स्टोरी को मेटाफर्स कैसे कनेक्ट होता है वहां से, और फिर रेमेडी के इसेंस को कनेक्ट करके। तो जब ये दो चीजें ये रेमेडी इसेंस के साथ में जुड़ जाएगी तो उसके बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा एकदम सटीक रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन कंसेप्शन ऑफ अवर केस। तो ये पूरा केस अभी तक आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पूरे पेशेंट ने बताया कि यार मैं आंखें झपका हूं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई रोशनी के धब्बे दिखाई देता है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। पेट में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बॉयलर जैसा जमा है। तो ये मैं ये सोच रहा था कि यार ये सब चीजें इसको मतलब जलन, इतनी जलन क्यों है, मतलब कभी यार किसी के साथ में मतलब आंखों से आंखें डाल में करता हूँ तो आंखों में से पानी आता है, पता नहीं क्यों, शायद उस गर्मी की वजह से तो आता नहीं होगा। तो ऐसे मतलब पेशेंट को ऐसे लगता है कि यार किसी से नजरें मिलाने के बाद में अगर पानी आ रहा है तो वो क्या करता था, चश्मा लगाता था। तो ये सब चीजें जो है ना वो अभी आप लोगों को समझना है। जब रनिंग करता है तो उसको अच्छा लगता है, तो ऐसे लगता है कि शरीर के अंदर की पूरी गर्मी निकल गई, ठीक है। तो स्वभाव कैसे है, तो शांत है। अब 1.5-2 साल पहले वो एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी जो है वो उसकी तैयारी छोड़ दिया क्योंकि घर वाले बोले कि बस हो गया तेरा 3-4-5-6 साल जो जितने तूने तैयारी करी, अभी तेरे को सफलता नहीं मिल रही है, तो अभी एक काम कर, तू शादी कर ले और खेती कर ले, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब सिचुएशन ऐसे होता था कि अभी उसको लड़कियां देखने के लिए जाना है तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं जाने का है, लेकिन जब जाता है तो वो उसमें एंजॉय कर लेता है वो। तो सबसे लास्ट में उसको पूछा कि यार मतलब क्या है, तो पहले कैसी जिंदगी थी, तो वो बोले कि सर मस्त जिंदगी थी, मस्त मैं यहाँ से अप डाउन करता था, मतलब वो इतना 100-150 किलोमीटर अप डाउन करता था लेकिन एंजॉय से वहां से आके स्टडी करता था, वापस आता था। तो फुल टाइम दोस्तों के साथ में लाइब्रेरी में स्टडी, ये सब चीजें चलती थी। और अभी उसके जिंदगी में जो है वो मजा जो है खत्म हो गया। तो ये चीजें थी। अभी जैसे वो फैमिली वाले बोलते थे उसको कि भाई तू लड़की देख ले, तो बहुत बार वो बोलता था कि नहीं बाद में देखूंगा, ये कर लूंगा। अब घर वाले बोलते थे यार खेती का ये काम अर्जेंट है, तो वो नहीं करता था। मराठी में जब आप केस सुनेंगे तो ये सब चीजें डिटेल मिलेगी, लेकिन जब वो केस उसमें डालते हैं और वर्बेटिम निकालते हैं तो ये बहुत सारी चीजें कट कर देता है, ये जो एआई जो होता है। तो वो मतलब हर काम को जो था ना वो अगले दिन में कल करूंगा, उसके बाद में लड़की देखने के लिए बाद में जाऊंगा,
लेकिन जब जाने को लगता तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये सोचता था कि यार ये मतलब ये क्या है ना कि यार ये पहले जो है वो मतलब जाता नहीं है, फिर बाद में जाने के बाद में अच्छा लगता है। मतलब पहले इच्छा नहीं होती काम करने की, लेकिन एक बार जब काम करने को लग जाता है तो वो काम करते ही रहता है। मैं बोला यार ये क्या है, तो मतलब ये 2 से 3 जगह पे आ गया, तो मैंने ये चीज को सोचने की कोशिश किया कि यार ये है क्या। ठीक है, मतलब पहले आपकी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, उसके बाद में जब आप काम को लग रहे हैं तो आप काम करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। तो यहाँ पे मतलब एक सिचुएशन, तो कुछ कुछ रूब्रिक जो थे वो थोड़े से मैं बाद में केसेस लेने के बाद में हुए, लेकिन इतने सारे रूब्रिक मैं मेरे कोई भी केसेस में नहीं लेता हूँ। लेकिन ये आप लोगों को समझने के लिए कि उसको काम करने की इच्छा नहीं होती थी, तो एडिक्टेड टेंडेंसी टू बिकम, जैसे एक काम नहीं करता था लेकिन जब उसको काम करने की जब इच्छा होती थी तो वो करते ही रहता था, करते ही रहता था। ठीक है, अभी उसकी जो इच्छा थी बहुत की, बहुत अच्छे से मैं मतलब मेरे जो करियर है उसमें PSI STI तो वो सपने देखता था, ठीक है ना, वो चीज के। तो लेकिन अभी जब सिचुएशन ऐसे घर वाले ने बोला यार बस हो गया तेरा पढ़ाई गिढ़ाई, अभी तो एक काम कर, तो तेरा ये सब चीजें संभालना चालू कर दे। तो उसके बाद में जो उसने क्या कर दिया कि अभी उसकी जो जो कुछ इच्छाएं थी, जरूरतें थी, उसने बाजू में रख दिया, और बाकी लोगों के लिए वो उसने शादी करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी जिंदगी कैसे हो गई, तो मतलब ये कुछ मजा नहीं था वो जिंदगी में। तो उसको मतलब बहुत इच्छा होती थी यार दोस्त लोगों के साथ में रहे, तो उसको जब भी वो ट्रैवलिंग वगैरह करता था बहुत अच्छा लगता था। ये सभी चीजें बाद में ली गई है, ठीक है। तो लेकिन हमने जो केस में एंटर किया था मतलब दैट वाज अ सिंपल सिंपल एंड द रेमेडी वाज अ प्लम्बम मेटालिका। ठीक है, ठीक है। सो तो मतलब अगर किसी काम को करने जाओ, कहीं बाहर जैसे निकलना हो, तो जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने एक रुब्रिक ले सकते थे कि यार वर्क रिपग्नेंस टू फियर न्यू एंटरप्राइजेस ऑफ टेकिंग। लेकिन और कभी काम करना शुरू करो तो ऐसे लगता है कि बस काम करते ही जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो यहाँ पे एक रूब्रिक आता है, तो ये एडिक्टेड टेंडेंसी। तो जैसे काम शुरू करो तो करता ही जाता हो, दिस इज इंडिकेट द प्लूमम पर्सनालिटी दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये आप इंजन देखो, अभी इंजन कितना बड़ा है। ठीक है, तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसका जो पेडल है उसको घुमाना पड़ता है, और फिर धीरे 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 फिर पेडल घूमते 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 ये सिचुएशन हो जाती है, देन इंजन स्टार्ट। तो जैसे पहले चक्कियां रहती थी गांव में, तो वहां पे क्या होता था ना कि जो कुछ जो इंजन चलते थे, स्टार्ट करते थे, तो कैसे करते थे, पहले धीरे धीरे घुमाना, फिर धीरे 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 इधर पेट्रोल का कॉक ओपन कर देते, फिर खट 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 खट, और फिर बाद में चालू हो जाता, और फिर बाद में टिक 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 कंटिन्यूअसली चालू हो जाती थी। तो मशीन का यही काम होता है। तो उसने क्या बोला कि जब भी मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, मतलब व्हेन द मशीन इज आइडल दैट इज आइडल, और जब लेकिन उसकी काम करने की चाहती है देन स्टार्ट वर्किंग 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 वर्किंग, और एक बार जब ये इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर चालू रहता है। तो ये जो जो उसका जो से था वो एक बार नहीं आया, 2 से 3 बार आया। तो मैंने बोला यार दिस शुड बी समथिंग मीनिंगफुल। तो जब लास्ट में जब केस लेते हैं तो आपको ऐसे लगा कि यार सब साला लाइफ ऐसे एकदम खराब सी हो गई, ऐसे लगता है ना। उसने बोला हाँ सर, लाइफ भी एकदम मतलब झंड हो गई जैसे, मतलब आप सब लोगों की भाषा में। तो मशीन का पर्सनालिटी ऐसा है, तो व्हेन इट स्टॉप डिफिकल्ट टू स्टार्ट, बट व्हेन स्टार्टेड डिफिकल्ट टू स्टॉप, एंड दिस इज नॉट द एंथुजियाज्म। मतलब ऐसा नहीं कि यार उसको कुछ कामों में एंथुजियाज्म रहता है, ऐसे नहीं है। मशीन सिर्फ एक बार वो चालू हो गई कि यार मतलब हम काम, वो काम क्यों करते रहते, दैट इज द मैकेनिकल परसिस्टेंस ओनली। तो प्लम्बम के बारे में ये है कि यार मैं काम को इंटरेस्ट लेके कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं होती है, काम को जस्ट काम करते रहना है, एंड दिस इज व्हाट इंडिकेट द मशीन। तो उसका नेचर ही ऐसा था। तो दिस इज मैकेनिकल परसिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ। हेलो, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. यस। सो बाद में जैसे आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, उसने बोला कि यार जैसे भी मैं किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ Yes, तो sir. आंखों से पानी निकल के आता है, तो अगर किसी से नजर मिलाकर बात करो तो पानी आ जाता है। तो वो क्या करता था, उसके लिए वो चश्मा लगाया था, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आंखें क्या होती है, मतलब ये क्या होता है, आंखें जो इंडिकेट्स द कनेक्शन एंड द ओपननेस। ठीक है ना, हम जब भी कोई बंदे से
मतलब जब हम कोई बंदा हमारे से आके बात करता है और वो हमारी आंखों में आके नजरें मिलाता है तो हम बोलते हैं कि यार दिस इज कॉन्फिडेंस, उसके बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है इसको, जब वो ये आंखों में बात मतलब सामने वालों से आंखों के ये करता है तो वो टाइम पे क्या होता है ना, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Then the eye contact symbolically means openness and connections. So, but the plumbum represent the opposite. जैसे कि क्लोजिंग, टाइटनिंग एंड डिस्टेंसिंग। तो क्या होता है ना कि यार प्लम्बम का एक टेंडेंसी होता है, वो जब उसके मतलब इसमें अचीव नहीं कर पाता है कुछ तो यार वो बाकी लोगों के साथ में उसको कनेक्शन मतलब आंखें मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी कोई भी गांव वाला बंदा है उसके आंखों में आके बात करता है, अरे क्या है, तो उसको याद आता है कि यार मैं प्रिपरेशन किया था 2-3 साल पहले, इसको बोला था कि यार अब भी आऊंगा तो मैं टोपी पहन के आऊंगा या तो फिर लाल देवी की गाड़ी में आऊंगा। लेकिन अभी जब वो लोगों से बात करता है तो यार उनसे आंखें मिलाने के बाद में ये सभी चीजें उसको फ्लैशबैक देती है सब चीजों का, तो फिर उसको करता है। इसीलिए अभी क्या होता है ना कि डिस्टेंसी का फॉर्मेट क्या हो गया कि काल, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं अगर कोई आपसे आके अगर गॉगल में आके बात कर रहे तो पहले उसको बोलना है यार पहले तू गॉगल उतार, ठीक है। तो गॉगल लगा के जो बात करते हैं ना तो उनकी नजरें कहाँ पे रहती है हमें पता नहीं, उनके भाव भी जो है वो सही तरीके से नहीं। तो किसी के साथ में भी आप डील करने जाते हो या फिर एक 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 नॉर्मल टॉक होता है, एक कोई व्यवहार होता है, तो वहां पे सबसे पहले उसको बोल देना कि यार गॉगल निकाल के बात करो आप, ठीक है, अभी दिन है यहाँ पे, अंधेरे में रूम में आए हो तो कोई इश्यू नहीं है, और मतलब सनलाइट नहीं है तो हटा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि प्लम्बम क्या करता है ना कि क्लोजिंग है, टाइटनिंग है, डिस्टेंसिंग करता है, ठीक है। प्लम्बम डज नॉट फियर द पीपल, लोगों से डरता नहीं है, इट फियर्स लूजिंग द इंटरनल कंट्रोल इन देयर प्रेजेंस। तो जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो यार सभी चीजें जो है वो पीछे की जो है वो जो उनसे बात किया था, अरे क्या चल रहा, परीक्षा है, कैसा है, बढ़िया चल रहा, हाँ हो जाएगा, इस बार निकल जाएगा, तो अभी ये चीजें रिन्यू होती। और कुछ कुछ रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि द आई कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द कंपैरिजन विद द अदर्स, व्हेन ही लुक्स इनटू द अदर साइड सबकॉन्शियसली इट मींस वेयर आर यू इन द लाइफ, ठीक है। तो जैसे भी कुछ दोस्त लोग जो सक्सेसफुल हो गए तो जब वो दोस्त लोगों से मिलने जाता होगा तो वो टाइम पे उसके दिमाग में आता है कि यार शायद से अपनी कहीं तो भी मेहनत कम पड़ गई या तो फिर यार इन लोगों का लक अच्छा था, तो यार ये सोचता है कि यार वेयर आर यू इन लाइफ। दिस क्रिएट द इंटरनल टेंशन, वाटरिंग आइज मेटाफोरिकली में इंडिकेट्स द इंटरनल इमोशनल स्ट्रेंथ इट डज नॉट एक्सप्रेस वर्बली, शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इसीलिए आज की आंखों में से आंसू आते हैं। एंड प्लम्बम डज नॉट क्राई इमोशनली, इंस्टेड बॉडी रिएक्ट्स, तो रो नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होता है उसकी जो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर देती है। वहां पे उसके बहुत सारे रीजंस है, एक तो एग्जाम में सही तरीके से क्रैक कर नहीं पाए, दोस्त लोग जो है वो अच्छी तरह से सक्सीड हो गए, और ऊपर से मैरिज का प्रेशर घर वाले बोल रहे हैं, और काम खेती का करना पड़ रहा है। जो बंदा जो है वो लाल दिए के गाड़ी में सपने देखता था वो अभी उसको खेती में जाना पड़ रहा है, ठीक है, उसके पास दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। सो बहुत शांत हूँ, किसी से लेना देना नहीं होता है। सो इफ आई रिड्यूस द माई इन्वॉल्वमेंट, तो यही चीज होती है प्लम्बम के बारे में कि यार अगर मैं मेरी इन्वॉल्वमेंट अगर कम करूंगा तो शायद मेरा दर्द जो है वो कुछ तो भी कम हो जाए, ये ऐसा इसका सोच रहता है। समझ में आ गया ना। सो अपैथी, नो एंजॉयमेंट इन ऑर्डिनरी थिंग्स, तो ये चीजें होती है। केंट साहब ने बहुत अच्छे में होता है कि नो एंजॉयमेंट इन ऑर्डिनरी थिंग्स, अभी उसकी जिंदगी में ऐसे हो गई कि यार उसको कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं लगता है। तो बर्निंग का क्या होता है, बर्निंग मतलब इसको यार हर जगह पे बर्निंग होता है। तो बर्निंग अभी अगर देखे जाए तो वी हैव लॉट ऑफ रुब्रिक्स रिगार्डिंग द बर्निंग। तो फाटक साहब लिखते हैं लैक्रामेशन, टीयर्स, बर्निंग हॉट, ठीक है ना, आईज बर्निंग, स्टमक बर्निंग, ठीक है ना, एब्डोमेन बर्निंग, इंटेस्टाइन सीन। तो ये बर्निंग क्या होगा इसके रिगार्डिंग, ये चीज को भी हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। सो बर्निंग को लेके ऐसा लगता है कि अगर पेपर आंखों के सामने रख जाए तो वो भी जल जाएगा, इतना ज्यादा जलन है। समझ में आ गया। हेलो, उसने ऐसे बोला है, जब आप मराठी में केस सुनेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो उसका बोलना था कि यार इतना जलन होता है आंखों में कि अगर मैंने सिंपल ऐसा पेपर भी रख दूं तो ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से जल जाएगा। तो द पेशेंट फिजिकल हीट ही इज एक्चुअली द वार्मथ ऑफ दिस बर्न ड्रीम्स। तो मैंने उसको एक मेटाफोरिकली इसको अंडरस्टैंड किया कि ये जो भी कुछ यार उसके आंखों में जलन है वो एक्चुअली इसके जो पूरे जो ड्रीम्स, ख्वाब जो थे वो धूल मिट्टी में मिल गए, वो जल गए जैसा था।
he was passing through the transitional phase where he must abandon his identity as a warrior. ठीक है, तो वो बंदा जो था जिसके अंदर एक जुनून था कि यार मेरे को ना लायल दिया कि गाड़ी में घूमने का, मेरे को पीएसआई बनने का या तो फिर एसटीआई बनने का, ये सब चीजें जो थी वो उसकी बर्निंग डिजायर थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, सब चीजों के ऊपर पानी फिर गया। तो उसका जो आइडेंटिटी जस्ट लाइक अ वॉरियर, पीएसआई, एसटीआई, एस्पिरेंट, एंड अभी क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिटी अभी क्या मिली है, दैट इज द फार्मर। तो बर्निंग जो डिजायर थी वो अंदर ही रहने दो, और ये अभी जितनी सारी जो बर्निंग मिलती है उसको बर्निंग डिजायर से मिलती है। दिस साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैनिफेस्टेशन इन हिज बॉडी एज द काइंड ऑफ द इंटरनल फायर। सो आर यू गेटिंग मी? हेलो, अंडरस्टैंड हो रहा हाँ या फिर सर, मैं ही बोले जा एक रहा हूं? मीनिंग है। तो ऐसे वैसे आप लोगों को जो पेशेंट के जो मीनिंग्स होते हैं, मतलब पेशेंट जो बोलेगा, तो मतलब इफ ही इज नैरेटिंग हिज फिजिकल कंप्लेंट, दैट इज आल्सो गिविंग द सम मेंटल मेटाफोरिकल मीनिंग्स बिहाइंड इट। तो ये चीजें आपको समझ के वो दवाई की इसेंस को समझना है, ठीक है। तो जो कुछ बर्निंग डिजायर थी, तो ये बर्निंग एवरीवेयर से थी। पेट में कैसे लगता था, जैसे कि बॉयलर है, इतना बर्निंग है, ठीक है ना। अभी अभी जस्ट क्या उसकी जिंदगी कैसी हो गई, जस्ट एक कोलू के बैल जैसा बन गया है। मैंने उसको बोला यार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में कोलू के बैल जैसे, हाँ बोले जस्ट बैल जो है वो एक ही जगह पे घूमते रहता है, मेहनत बहुत होती है, ठीक है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। अब प्लम्बम का जिंदगी समझ में आ गया आपको? हेलो, Yes, sir. हाँ। सो मतलब वो घूम तो बहुत रहा भाई, ठीक है, घूम तो बहुत रहा। ऐसे अगर देखे जाए तो वो मीलों तक चले गया है, लेकिन वो अगर देखे जाए तो कहाँ है, वो एक ही जगह पे घूम घूम के उसको चक्कर आते, इसीलिए वो बैल को क्या करते हैं, उसको आंखों पे पट्टी बांधते हैं, क्योंकि वो गोल गोल घूम के उसको चक्कर ना आ जाए, इसीलिए। तो मेहनत तो बहुत करता था पर पहुंचता कहीं नहीं था। मरीज को लगता है स्पर्धा परीक्षा का रोमांच, बड़े सपने सब खत्म हो गए, ठीक है। और यही था उसकी जिंदगी का सैडनेस, यही था क्या, मेहनत तो बहुत किया उसने, लेकिन उसको कोई भी पदवी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है, ये होता है। तो प्लम्बम की जिंदगी में ये होता है, मेहनत बहुत होती है, बहुत डिस्टेंस चले जाता है, बहुत समय निकल जाता है, बट ये पहुंचता कहीं नहीं है, ठीक है। सो और अभी क्या हो रहा है कि स्पर्धा परीक्षा का रोमांच, बड़े सपने जो भी कुछ थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, एंड खेती, घरेलू जिम्मेदारियां और उसके चक्कर में वो फंस गया, ठीक है। मतलब जहां विकास की कोई नई दिशा नहीं है, लाइक a bullock that keeps moving in the same circle, working very hard but reaching nowhere, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्साइटमेंट जो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो दोस्तों के साथ में मजा आती थी, वो स्टडी करते थे, बहुत रनिंग करते थे, भागते थे, पसीना निकलता था, बहुत मजा आता था। तो ये सब चीजें अभी ठंडी की ठंडी हो गई है, ठीक है ना। सो ही इज फीलिंग ट्रैप इन साइकिल ऑफ दिस डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फार्मिंग होती है उसमें। सो डेलूजन, बिजनेस, ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग। तो क्या हो गया उनकी जिंदगी में, कैसे चल रही, अभी घिसी पिटी चल रही है वैसे वैसे। डेलूजन एंगेज ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ही इज एंगेज इन सम ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। तो अभी उसको क्या लग रहा है कि ये सभी चीजें जो है ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन जैसी लग रही है उसको, ठीक है ना। सो प्लम्बम कैसे होता है, तो प्लम्बम की थोड़ी सी जर्नी भी समझनी पड़ेगी। प्लम्बम ऐसे ही थोड़ी बना, ठीक है ना, बैल बना है, लेकिन बैल से क्या था, बैल बनने के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, वो भी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। सब लोग जगे हैं ना, सोना नहीं है आज। यस सर। सर यस सर। सर वो बर्निंग वाला एक बार बताइए ना रूबी प्लीज। सो बर्निंग में क्या था ना, हिज मतलब उसका जो कुछ डिजायर थी, दैट वाज बर्निंग डिजायर, ठीक है ना। मतलब वो जो भी कुछ था वो इतना जुनून से करता था। तो हम बोलते हैं ना यार उसके अंदर फायर है, तो फायर मतलब क्या यार, उसको बहुत इच्छा थी बनने का, अभी नहीं बन पाया, तो वो जो फायर था वो वहां के वही रहेगा ना, समझ में आ गया। और अभी उसकी जो इच्छा है वो सभी के सभी धरी की धरी रहेगी, जो फायर था उधर के उधर ही है, ठीक है। आंख में से जलन हो रही, पेट में जलन हो रही, जहां जहां से पूरे बॉडी में जलन होती है। और ये जलन से छुटकारा कैसे मिलता है, जब वो ऑर्डिनरी बिजनेस से लेके, एक नॉर्मल बिजनेस से लेके वो कुछ तो भी नया कुछ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नया मतलब क्या, वो रनिंग करता है,
जब रनिंग करता है, क्योंकि प्लम्बम को वो भी चीज नहीं चाहिए, नई चीज भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जब वो उसके बॉडी को फिजिकली एक्सर्ट करता है, पसीना आता है, तब जाके उसको लगता है, क्योंकि वो उसका जो ये ट्रैप फीलिंग होती है, ये जो पर्सिंग ऑर्डिनरी बिजनेस वाली, वहां से वो कुछ हटके उसको अलग से फीलिंग देता है। ठीक है, तो जर्नी कैसे होता है प्लम्बम का, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दिस इज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर मास्टर्स। तो मास्टर का भी कभी भी मतलब तरीका होता था, ऐसे होता था। मास्टर पहले केस लेते थे, केस के बाद में उसको रूब्रिक्स क्या लिए वो देते, थोड़ा सा रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन होता था, पेशेंट का मेटाफोरिकल जो 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 सेंटेंस होते हैं उसको मेटाफोरिकल मीनिंग से होते थे, देन मास्टर गो फॉर द जर्नी। So the plumber is a very ardent personality. ठीक है, we will got in तो लेफ्ट साइड में मैं उसका पढ़ते जा रहा हूँ, राइट साइड में आप सब लोगों को उसकी रूब्रिक जो है मिलते जाएंगे, बट नॉट इन एनी एम्बिशन रूब्रिक। अभी खास बात देखो इसके, प्लम्बम रुक कहाँ पे जाता है वो चीज को समझो। तो प्लम्बम इज अ वेरी आर्डन पर्सनालिटी, आर्डन है बट एक भी एम्बिशन के रूब्रिक में नहीं है ना मजेदार? हेलो, मजेदार है? यस। हाँ तो नहीं है ना, तो वही चीज को समझना है हमें। तो ही इज ऑब्स्टिनेट व्हाट ही वांटेड टू डू, सिर्फ वो ऑब्स्टिनेट होता है या मेरे को ये चीजें करनी है। तो लेकिन वहां पे एम्बिशन जो है कहीं तो भी मिसिंग होती है, इसीलिए तो ऑर्डिनरी बिजनेस में लगता है। अभी समझो फॉर एग्जांपल आप होमोपैथ प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, अभी आप सोचते हो कि यार आपका प्रैक्टिस कितने का हो जाए। हेलो, अभी किसने बोला क्यों? क्यों किसने पूछा? तो मैंने पूछा सर। हाँ सुजाता, हाँ चलो बोलो। हाँ तो अभी आप होमोपैथ प्रैक्टिशनर, आपको प्रैक्टिस कितनी चाहिए अभी? अभी कितने का है? अभी तो धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ तो ठीक है, अभी अभी कितने का है प्रैक्टिस? समझो आप दिन में कितने पेशेंट देख लेते हैं, जस्ट एक गम्मत आंकड़ा बोलो, मजाक में, कोई भी चले। हफ्ते में तो सर, हफ्ते में नहीं हाँ सर, में 7-8। अच्छा, तो ठीक है, पर डे के हिसाब से आप 7-8 पेशेंट देखते हो, ठीक है। अभी आपकी देखने की ओपीडी में बहुत दिखती है सर। हाँ तो चलो अभी आप कितने देखते हो? 50 देखते होंगे, यस ठीक है। तो लेकिन 50 पे रुकने की इच्छा है क्या आपकी? नो सर, नो सर। आपकी इच्छा क्या है? आपके जैसे सर। नहीं, अरे मेरे जैसा वो छोड़ दो, लेकिन मैं भी ज्यादा पेशेंट नहीं मैं ज्यादा पेशेंट नहीं देखता हूँ, लेकिन सोचो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल की आपकी 50 से ऊपर कहीं ना कहीं तो भी जाने की इच्छा होगी, सही है। अगर आप 20 पे रहेंगे 10 साल तक तो क्या हो जाएगा? 2 लाख। हाँ तो वही सोचो कि अगर 20 पे ही रुक गई 10 साल तक तो फिर क्या होगा? माइंडसेट कैसे रहेगा बताओ? पागल हो जाएगा वो डॉक्टर सर। हाँ तो उसका इंटरेस्ट चले जाएगा उसमें से, समझ में आ गया? तो क्या होता है ना कि जब आप एक जगह पे रुक जाते हो ना, तो उसके बाद में प्लम्बम वाला स्टेट आता है। आप वहां से नीचे उतरे तो बहुत मतलब अलग से रहेगा। वहां पर आप सोचेंगे कि यार नहीं मैं ना मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा कम होते जा रहा है, मतलब डेलूजन थीम इज गेटिंग फियर, पॉवर्टी ऑफ, एंग्जाइटी, मनी मैटर्स, ऐसे आके फिर आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा भड़क जाएंगे और थोड़ा सा कुछ तो भी मेहनत करेंगे, ऐड करेंगे, रील डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिस इज व्हाट द एम्बिशन इज। लेकिन प्लम्बम की जिंदगी कैसी रहती है? स्टूल जैसी चलती रहती है, एक ही लाइन में चलती है, ठीक है। और जब एक लाइन आपकी ईसीजी में आती है तो मतलब क्या हो गया है? आपकी बैंड बज गई ना, मर गया। तो यहाँ ये होता है, मतलब क्या होता है ना कि मशीन का वैसे ही, मशीन इज डेड बट इट एक्टिव, ठीक है। तो प्लम्बम की जिंदगी भी वैसी है, इज लाइक ए डेड बट एक्टिव, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि ये ऑब्स्टिनेट है यार, उसको उसकी जीत के हिसाब से करना है। ही नेवर लिसन टू एक्सेप्ट टू हिज ऑथोरिटी लाइक ए बॉस और पेरेंट्स, इज वेरी मच कॉन्ट्ररी टू। आपको सभी रूब्रिक्स मिल जाएंगे इसमें। ये बंदा कैसा है ना, ये वो बोलते हैं घर वाले कि यार बस हो गया ना तेरा, लेकिन ये क्या होता है कि ऑब्स्टिनेट होता है, नहीं यार मेरे को ना ये एग्जाम ऐसे करने का, वैसे करने का, वैसे, मतलब ऑब्स्टिनेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स।
वो प्लान्स करके रखता है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होती, आर्डेंट है उसमें। और जब वो उसको कोई सजेशन देता है, यार घर वाले बोलते हैं यार बस हो गया ना अभी ये तेरा, बस हो गया, कितने दिन तक करेगा, तब जाके वहां पे वो उसका बोलना रहता है कि नहीं मैं और 1-2 साल तक करेगा। ठीक है, तो उसने कम से कम 5 साल तक उसने तैयारी किया है। ठीक है, और 3 साल से अभी लास्ट टाइम में वो कंटिन्यूअसली फेलियर में गए। फिर बाद में कोविड आया, कोविड के बाद में तो घर वाले ने बोला यार अभी तेरे 5 साल ऑलरेडी गए हैं, 2-3 साल इधर जा रहे हैं, ना भर्ती निकल रहे ना कुछ नहीं, तो फालतू का पीछा छोड़ दे, तेरा एज बार भी हो जाएगा अभी, तो मतलब नहीं है, अभी तो तेरे खेती में लग, शादी कर, बाल बच्चे पैदा कर, बस खत्म। तो ये प्लम्बम का पर्सनालिटी कैसे होता है वो समझना। So he's a very contradictory to them, never listen to any one of them, he never like to be contradicted। ठीक है ना, तो अभी पर्सनालिटी कैसा है देखो उसका, तो नहीं मन मानेगा, नहीं यार मेरे को ना करने का ही है। ठीक है, वो पेरेंट लोगों से लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा ये सब चीजों को। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन चिल्ड्रन से। तो जब ये जो रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, तो ये बच्चे जो रहते हैं वैसे ही रहते हैं। मेरा एक दोस्त था वैसे ही होता, तो मतलब उसने शादी किया और शादी के बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए गया। फिर जो कार लिया था, फिर बुड्ढे ने बोला कि नहीं यार मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, वो उसने बोला कि नहीं देते तो कोई इशू नहीं, मैं मेरा कार बेच देता। तो उसने कार बेच दिया और जो पैसे मिले उससे वो उसने कंटिन्यू किया। फिर बीवी को भी छोड़ दिया वहां पे और बच्चे को भी छोड़ दिया उसने, और उसने बोला कि नहीं मैं मेरा कॉम्पिटिटिव का एग्जाम। तो उसके पिताजी का जो कंडीशन था वो मतलब बहुत खराब हो गया। उसने बोला यार ये अच्छी खासी प्रैक्टिस डॉक्टरी की छोड़ के वहां पे जाके बोले ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा, और क्या था वो सपना था वो लाल दिए वाला। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लड़के जो रहते हैं वो जो क्या होते हैं, एक बार उनके दिमाग में ठान बैठते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये एग्जीक्यूट ही करना है। यहाँ पे एम्बिशन नहीं, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की है। एम्बिशन रहती है तो उसमें मजा आता है। तो वो पहले वाला जो सिचुएशन था अभी कुछ भी नहीं है। तो जब ये सिचुएशंस में रहता है तो बंदा वो क्या रहता है, कॉन्ट्ररी करता है, बाकी लोगों की नहीं सुनता है, मेरे को जो करने का है ना मैं वही करे। ठीक है, so he was taking a lot of efforts and time to prepare to try to crack the MPSC exam, but he failed, and it was never affected him a lot। फेल हो गया लेकिन कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। So he may say, तो he say it might have affected him, we don't find in element of the failure। वो फेल्ड हो गया लेकिन फेल्ड से उसको कुछ फर्क पड़ा है क्या, क्योंकि हमें वो कोई भी एक भी रूब्रिक में नहीं मिलता है एलिमेंट्स फेलियर के बाद। बट वट एवर ही गॉट ही थ्रोस हिमसेल्फ इनटू द स्टडी एंड फार्मिंग। तो अभी क्या होता है ना कि जो भी चीज में वो क्या करता है वो खुद को झोंक देता है, वो चाहे पढ़ाई हो या फिर वो उसका फार्मिंग, दो में से कुछ भी हो जाए वो उसको थ्रो करता है। दैट इज द वर्कहोलिक। ठीक है, तो वर्कहोलिक होने के बाद में क्या होता है इसका। तो अल्टीमेटली ही जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तभी क्या हो गया कि ही हैज टू स्टॉप एवरीथिंग रिगार्डिंग हिज करियर। अभी उसको वापस आना पड़ा, सब बुक्स वगैरह लेके, ना एग्जाम्स हुई ना कुछ नहीं हुई वो टाइम से। तो क्या था, सिर्फ सब लोग जो थे वो क्लोज बैठे हुए थे एक ही जगह पे। नाउ द फैमिली डिमांड इज दैट ही शुड मैरी एंड वन शुड लुक आफ्टर द फार्म एज ही हैज बिकम द डिपेंडेंट। अभी क्या हुआ ना कि अभी वो घर पे बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना एमपीएससी के तैयारी का कुछ फायदा हो रहा, ना कोई एग्जाम्स आ रही है ना कुछ नहीं। अभी क्या कर सकता, घर में बैठे बैठे जो लोग थे मतलब वो अभी क्या होगा, फैमिली के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गया। तो घर वाले यही बोलेंगे कि यार अभी बस हो गया तेरा नाटक, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यू आर डूइंग नथिंग। क्योंकि शर्म आती है ना, जब आप एमपीएससी का तैयारी करते हो उसके बाद में जब खेती में जाते हो तो सब लोग देखते हैं ना, फावड़ा लेके जा रहे हो आप, हल लेके जा रहे हो कंधे पे, या फिर ट्रैक्टर हकालते जा रहे हो, बैलगाड़ी को हकालते जा रहे हो, तो बाकी लोग देखते हैं ना वो चीज। तो अभी ये क्या हो गया ना, डिपेंडेंट हो गया दूसरों के ऊपर। ठीक है, बट एज ही डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, नाउ ही हैज टू कीप हिज स्टडी असाइड एंड हैज टू मैरी और टू डू, या तो फिर उसको शादी करने का या तो फिर फार्मिंग करने पड़ेगा। मतलब अभी सिचुएशन अभी हो गया है इसका कि यार जो पहले वाला जो लाइफ में जो एक क्रेजी थिंग वाला जो सिचुएशन था यार मेरे को करने का हार्ड है, तो वो अभी अभी इसका सिचुएशन कैसे होगा, ही इज अबाउट टू बी अरेस्टेड। ठीक है, तो आप सोचेंगे सर अरेस्ट मतलब उसने क्या पुलिस का गुनाह किया, ऐसे नहीं।
अरेस्ट का मतलब आप क्या होते हैं कि अभी कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है, सीजिंग टू बीट, है ना, आपके अंदर का जो एक बीटिंग जो होता है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अरेस्टेड का मतलब वो होता है यार, आपके अंदर का जो ये है जकड़न जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्ट है, और हार्ट को आप एक इसमें बंद करके रखते हो तो उसका फुल नेचर, तो मजा आएगा क्या। तो ये जो मतलब हार्ट बीटिंग हो रहा है, लेकिन अभी अगर वो अरेस्टेड हो गया तो फिर क्या होगा। तो जो एम्बिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, अरेस्टेड को तोड़ देते हैं और वहां से पिंजरा तोड़ के बाहर जाते हैं, ठीक है। ये नहीं रहता, वो आप ही रहता है, और यही दिक्कत होता है प्लम्बो का, ठीक है ना। इसको डर तो है, लेकिन उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकता है, उसको पिंजरा तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही। यहाँ पे क्या कर रही है, ये सैक्रिफाइस कर देता है, ठीक है ना। बट एवरीथिंग ही वाज डूइंग इट जस्ट विदाउट इंटरेस्ट। मतलब शादी भी कर रहा था विदाउट इंटरेस्ट कर रहा। अब करने के लिए जाता है, लड़की देखने गए थे, जानने आज नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे, फिर गया है, मतलब जब तक नहीं जाता तब तक ठीक है, मतलब जाने को इच्छा नहीं होती, लेकिन जब जाने के लिए जाता है तो फिर उसको मजा आता है। तो मतलब क्या होता है ना कि प्लम्बम का एक सिचुएशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस वाला। तो उसके अंदर जो हार्ट का जो फ्लोइंग जो ब्लड का जो फ्लोइंग होता है थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज ब्लॉक। कहीं तो जाके उसको रेजिस्टेंस तैयार होता है। सो बट एवरीथिंग ही वाज डूइंग इट वाज जस्ट विदाउट इंटरेस्ट। प्लम्बम इज नॉट प्रेजेंट इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ड्यूटी रूब्रिक। खास बात ये है, समझ में आ गया। हेलो, एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के रूब्रिक में नहीं है प्लम्बम। सोचो कैसे है जिंदगी इसकी, ना एलिमेंट फेल्यूर में है, ना एम्बिशन में है, ना ड्यूटी में है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कैसी जिंदगी होगी ये चार चीजें जब आपकी जिंदगी से निकल जाए। मतलब यू आर डूइंग द थिंग्स फॉर जस्ट डूइंग, इवन ही इज नॉट विलिंग फॉर हिज, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अभी उसको क्या करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ रही है। यार मैं मेरे को ना सिर्फ मैं सेक्रीफाइसेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ फायर ही नहीं बचा है, ठीक है। So now the career have become the forbidden things। तो जो उसका करियर था, वो करियर जो था ना, वो क्या उसके लिए क्या हो गया, फॉरबिडन थिंग्स बन गया, ठीक है। प्लम्बम always have the burning desire for it, which is symbolically present in the burning is the parts, ठीक है। तो उसके मतलब अभी क्या होता है ना कि मैं जो चीजें अभी उसके लिए फॉरबिडन थिंग्स हो गई, ठीक है। मतलब अभी घर वालों ने बोल दिया भाई तेरा तू करियर गिरियर सब बंद कर दे, अभी तेरा पुस्तक तक छोड़ दे, अभी खेती करना पड़ेगा। फिर भी उसके दिमाग में तो वही चलेगा, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर माइंड में जो चल रहा है अभी फिजिकल के ऊपर प्रेजेंट करेगा। अभी स्टडी कर नहीं सकता, ऐसे तो मजाक में नहीं, वो खेती वाले मतलब वो घर वालों को नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खेती में नहीं जाऊंगा। तो बोलेंगे यार पढ़ाई करके क्या तेरा क्या फायदा होने वाला, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे उसकी जिंदगी कैसे बढ़ रही है, इट्स लाइक अ फॉरबिडन थिंग्स, ठीक है ना। तो मतलब उसके दिमाग में जो चीजें अभी जो भी कुछ है वो दिमाग में रहेगा, और उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेगा वो, फिर वो एक ख्याली बुला, लाल दीवाची गाड़ी, वैसी टोपी, या फिर एसटीआई बनेगा तो ऑफिसर के जैसा कोट पहन के जाऊंगा ऑफिस में वगैरह। सो द माइंड ट्राइज टू कॉम्पेंसेट फॉर द इनर स्मॉलनेस और द फेलियर। तो माइंड क्या कर रहा है यहाँ पे, जो अंदर जो एक एक पोपड़ी तैयार हो गई, छोटापन आ गया वहां पे, द हंग्री माइंड ड्रीमिंग ऑफ द feast। तो यहाँ पे क्या करता है हमारा जो माइंड है, वो ख्याली पुलाव बनाना चालू कर देता है। दे फील ऑर्डिनरी, सो द माइंड क्रिएट्स द रॉयल आइडेंटिटी। अब वो बंदे जो है वो ऑर्डिनरी इसमें रहते हैं, इसीलिए उनके दिमाग जो चलते हैं वो ख्यालू पुलाव वाले चलते हैं, एयर कैसल्स में रहते हैं। कैसल्स एंड द सॉरी द डिल्यूजन कैसल्स एंड द पैलेसेस। समझ आ गया। इफ द रियलिटी कैनॉट गिव मी द पैलेस, आई विल बिल्ड इन वन ऑन माई इमेजिनेशन। अगर परिस्थिति मुझे अच्छे से ये नहीं दे सकती, एक मजला नहीं दे सकता, तो मैं सपने सपने में उसको तैयार करूंगा, ठीक है। हेलो, अंडरस्टैंड हो रहा थोड़ा, मैं थोड़ा पास जा रहा हूँ। Yes, sir. तो उसका जो क्या मतलब कैसल्स एंड पैलेसेस क्या था, उसके जो सपने जो थे पीएस आईएएस या बनने के जो उसको सपने थे, वो सभी मिट्टी मोर हो गए, ठीक है ना। तो स्लाइड्स वगैरह ठीक ठाक दिख रही है, विजिबल है। यस सर, यस वेरी सर क्लियर, वही वेरी क्लियर। अभी वही रूब्रिक की दिख रही है, वर्क अल्कोहलिक वाले की।
अभी आपने ठीक कैचुअल पैलेस बोला, वो वाली स्लाइड नहीं दिख रही। है। तो वो आप प्लम्बम में गए हो, एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक है। दिख रही दस द क्लियरली वर्स्ट, नहीं। यस यस, चलिए, नथिंग टू वरी, चलो बाद सर में एक देख लेना। सुजाता 5 मिनट के लिए। सो दस द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ स्टार्ट। अभी यहाँ पे उसकी जिंदगी का सबसे खराब पार्ट चालू हो जाता है। एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज गोइंग लाइक अ मूविंग अ व्हील विदाउट द ऑयल। अभी जो उसका जिंदगी कैसे चलेगा, एक मतलब जो बैलगाड़ी का जो ये रहता है, आंख रहता है, चाक रहता है ना, तो बस उसके जैसा, जिसके अंदर वंगन ही नहीं है, वो सिर्फ चलते रहेगा, कां कू आवाज करते रहेगा। ठीक है। या फिर वो जो पानी, जो कुएं से आप पानी खींचते हैं, तो वहां पे जो खिराड़ी रहती है, उसका जो व्हील रहता है, उसको भी तेल नहीं दिया तो वो कुछ 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 बचते रहती है। तो वैसे वाला सिचुएशन हो जाता है, अ मूविंग व्हील विदाउट द ऑयल which create the symbolic the heat everywhere in the body। अभी अगर तुम्हारे कोई भी जगह पे अगर समझो फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट विल बी क्रिएटेड, राइट और रॉन्ग। तो क्या होता है ना कि इसकी जिंदगी में इसको जो भी कुछ करता है ये फ्रिक्शन से करता है, इसकी इच्छा नहीं है फिर भी ये करते जा रहा है, इसीलिए तो इसको मजा नहीं आता है ना। दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग दैट ही इज परसिंग द ऑर्डिनरी बिजनेस। तो इसका जिंदगी कैसे चल रहा है, मूविंग अ व्हील विदाउट ऑयल विच क्रिएट द सिंबलिकली हीट एवरीवेयर इन द बॉडी। और इसकी वजह से इसके हर जगह पे आपको बर्निंग हीट, बर्निंग हीट फिजिकल में बहुत जगह पे बर्निंग में आपको मिल जाएगा। सो ही इज बोर्ड विद एवरीथिंग, जस्ट पासिंग द टाइम विच इज आल्सो द रनिंग स्लो। इसके अंदर रूब्रिक मिलते हैं हमें, एनओए साइलेंट, एनओए आफ्टरनून, इंडिफरेंस, एनओए विद, टाइम पासेस टू स्लोली। यार वो चीज में कुछ मजा ही नहीं, एंथु ही नहीं है, वो चीज क्यों कर रहे हैं, ना ड्यूटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उसके लिए फेलियर आ रहा तो उससे कुछ पार्क लेके हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा आपकी जिंदगी में, समय कैसे कटेगा, बहुत धीरे धीरे कटेगा भाई। ठीक है। जो लेक्चर आपको बहुत बोरिंग लगेगा, वो लेक्चर आपको सबसे लंबा लगेगा। सही है, जैसे मेरे वाला लगता है। So physically, we find the symptoms like yawning and stretching whole the day। ठीक है ना। तो इसमें जब बोरियत होती है, तो बोर होने के बाद में आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लेक्चर बोर हो गया है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, चालू हो जाएगा आपका सब नाटक। ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जहां पे कुछ मजा नहीं आ रहा, तो वहां पे आप कोशिश करते हो कि आपका सर्कुलेशन जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है। So physically we find the symptom like yawning and stretching whole the day। This is nothing but the physical aspect of your NOE। जो बोरियत माइंड लेवल पे है उसका फिजिकल एस्पेक्ट है आपका ये NOE का। समझ आ गया। So we have the nice rubric that the mind propensity to stretch and yawn incessantly। पाठक, stretch impulse to hours for, कितना, घंटों घंटों तक, मतलब यार आप खुद को इतना लंबा कर रहे हो। समझ आ गया। तो खींचने का मतलब ही वही होता है, आप सिर्फ खींचते हो, आपकी जिंदगी का मतलब काम है उसको खींच रहे हो, आपका जो काम है काम को खींच रहे हो, जो कुछ आपने हाथ में लिया है, एक जॉब है उसको खींचते जा रहे हो, आप सिर्फ आगे आगे लेके जा रहे हो उसको, उसमें कुछ मजा नहीं है। ठीक है। सो हियर he never wanted any people reminding him about his past and even his family। ठीक है। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं चाहिए, इवन इसके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे नहीं चाहिए कि जो इसको पास्ट के बारे में याद दिलाए। ठीक है। अगर ये काम नहीं करेगा, हाँ तो मेरी इच्छा थोड़ी थी, मैं खेती नहीं करने की इच्छा मेरी, मैं तो यार तू वहां पे जाके भी तूने 5 साल में कौन से तीर मारे, क्या उखाड़ लिया तूने वहां पे जाके। तो उसको लगता है कि यार नहीं है साला, मतलब मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है ना। सो ही थिंक दैट ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। सिंबलिकली ब्रिंग्स द टीयर व्हेन द आई कांटेक्ट हैपन। सिंबलिकली क्या होता है कि जब भी हम वो आंखें मिलाने की बात आती है, तो आपकी आंखें उसको आंखें नहीं मिला सकती, वो इमीडिएटली उसके अंदर की सेंसिटिविटी को जगा देता है और वहां से उसके टीयर्स रोल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना। बट इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द फ्रेंड्स। लेकिन जब दोस्तों के साथ में होता है तो बात अलग हो जाती है।
सो यहाँ पे देखो, एवर्शन टू द फैमिली मेंबर्स, अप्रोच बीइंग पर्सन बीइंग एग्रीवेशन, कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड्स ऑफ, प्लम्बर के अंदर मिलते हैं। इसीलिए किसका तो प्रिस्क्रिप्शन कालीपॉस भी आ गया। दैट वाज अ नाइस थिंकिंग, ठीक है ना, बिकॉज द कालीपॉस हैज ऑलवेज डिजायर टू, मतलब ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होता है ना, उसके सर्कुलेशन को थोड़ा सा सही तरीके से करते हैं। उसको नर्वस, कालीपॉस में क्या होता है, उसको न्यूरॉन लेवल पे स्टिमुलेट करते हैं, और इसके अंदर वो फिजिकल लेवल पे, मतलब उसके सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। He constantly thinks that he should have worked harder to get the post. कभी भी उसके दिमाग में यही चलता होगा ना यार, मैं थोड़ा सा मेहनत और करता था तो यार मजा आ जाता था, ठीक है ना। तो खुद के जो कुछ मिस्टेक्स हुई है उससे गुस्सा आता है उसको। 12 past disagreeable occurrences. So his lack of confidence is a breaker for him. So which stopping him from anything new. उसका कॉन्फिडेंस जो इतना लो होता है कि इसकी वजह से उसके लाइफ में स्पीड ब्रेकर जैसी चीजें लगती रहती है, और इसीलिए तो उसका स्पीड जो है वो एक ही लेवल पे चलते रहता है, ठीक है। सो हिज डेली रूटीन्स वर्क इज आल्सो बिकम अ स्ट्रेंज एंड न्यू, तो डेल्यूजन न्यू एवरीथिंग इज, ठीक है। अभी खेती का काम वो डेली कर रहा है, लेकिन खेती में बहुत सारे काम होते हैं, तो खेती का काम, हम बोलते हैं यार खेती में काम के लिए जा रहा है, तो वहां पे कैसा होता है कि यार कल आपको खेती के लिए काम के लिए आता है। जो मजूर रहता है उसको ये नहीं, इसको ये टेंशन नहीं रहता कि कल यार वो बीज बोएगा या फिर नींदन रहेगा या फिर मेरे को घास काटने के लिए जाना है या फिर वो कंधे पे उठा के उसका कुटार बनाने का, वो चीज नहीं रहती। लेकिन इसके लिए अभी क्या होगा, एवरी डे जो जो वर्क रहता है वो भी इसके लिए न्यू रहता है, ठीक है ना। फियर अंडरटेक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हाथ में लेने के लिए डर जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है ना, लड़की देखने के लिए जा रहा लेकिन मन नहीं होता है, ठीक है। तो और बाद में जाता है तो फिर कर लेता है, ठीक है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस हिज वे इन अ वेल नोन स्टेट, जो काम अच्छे से करता था अभी तक वो चीजें जो है वो अभी वो सही तरीके से नहीं कर पाता, ये लेटेस्ट स्टेट में आता है। सो फॉरगेटफुलनेस, वेल नोन स्टेट, ठीक है। तो ये सभी रूब्रिक जो है आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़े हुए हैं इसको। So we have the faculty as his mind is imagining the post of the PSI and STA and he has become the farmer. अब क्या हो गया, हमें साला माइंड लेवल पे मन के अंदर तो मेरे कैसल्स पैलेस जो है वो ऐसे ही चल रहे, कैसे यार मैं PSI हूँ, एक STA ऑफिसर हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन वही कंफ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी एज हिज, confusion of mind, identity has duality senses of, confusion of knows not where he is। तो ऐसे रूब्रिक्स बाद में आते हैं उसके, ठीक है ना। यार सिचुएशन कैसे हो गया उसका रियल लाइफ में देखिए। सो द माइंड ट्राइज टू कॉम्पेंसेट फॉर द इनर स्मॉलनेस ऑफ द फेलियर, अ हंग्री माइंड ड्रीमिंग ऑफ अ फीस्ट दे फील ऑर्डिनरी, सो माइंड क्रिएट्स द रॉयल आइडेंटिटी, और यही होता है डिल्यूजन कैसल्स एंड द पैलेसेस। सो द ब्रूडेड over any forbidden things would still, अभी कुछ मैथमेटिक्स के अंदर काफी अच्छे से इसका दिया, हियरिंग्स के अंदर जो प्रूविंग्स था तो वहां पे उन्होंने सभी अच्छे से, बहुत से अच्छे से लिख दिया इन्होंने। brooded over any forbidden things would steal from the house in the servant's clock and bonnet to obtain the stimulant, but from the moment their prohibition was withdrawn ceased to have the any desire for them, after being permitted to visit the priest and converse him to cease to talk and hit him riches। ये समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको हम समझते हैं। अब क्या होता है ना कि इसको अगर बोलते हैं कि यार तू दारू नहीं पीने का है, तो ये जानबूझ के पिएगा दारू। जब उसको बोलेंगे कि जा पी अभी तेरे काशी कर, उसके बाद में छोड़ देगा। तो ऐसे वाला सिचुएशन है ना। बहुत सारे लोग देखे ना, उटपटांग लोग देखे ना आपने आपकी जिंदगी में ऐसे, तो उनके लिए ये दवाई है। अब अभी उसके अंदर और भी दूसरे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रायस को बोलते हैं कि यार मतलब वो रहता है एक चर्च का बंदा और उसको दूसरे चर्च के लोगों के प्रति उसको अट्रैक्शन होता है। ये बोलता है कि नहीं यार तेरे को नहीं जाने का, वो रास्ता नहीं पकड़ने का है तेरे को, तो बोलेगा नहीं जाएगा, तो उसका और बोला बुझा तो फिर उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा उसमें से।
So one may be see an upright church-going patient who has suddenly decided to become a Buddhist. So जो क्रिश्चियन बंदा रहता है वो बोलता है कि नहीं मैं बुद्धिस्ट बनेगा, और टू फॉलो एन इंडियन गुरु, या तो फिर मैं इंडियन गुरु को फॉलो करूं. सच बिहेवियर क्रिएट द ट्रेमेंडस टर्मोइल इन हिज फैमिली. तो फैमिली बोलती है कि भाई तू ऐसा पटांग धंधे क्यों कर रहा है, नहीं जमेगा, ऐसे कैसे कर रहा. तो फ्रेंड्स कॉलीग्स ये सभी लोग उसको समझाते हैं. तो ये ट्रेमेंडस टर्मोइल्स क्रिएट होता है उसके फैमिली. एंड इट इज दिस अपहीवल व्हिच seems to be counteract the apathy and the paralysis he has experienced. His friends were to say, okay, go ahead, and the patient would likely to lose interest in the new venture. फिर उसका मजा चले जाएगा उसमें से. ठीक है, ये विथलकर सर ने लिखा है ना. मजेदार है. मतलब जो चीज उसको ना बोला है वो चीज वो करने के लिए, फॉरबिडन थिंग्स के ऊपर ब्रूड करने की उसका टेंडेंसी रहता है. तो इसीलिए ये जो बंदे होते हैं इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो थोड़े से अपने रिलेशनशिप में ही बहुत सारे अलग अलग लेवल के इसके माइंड में चलते रहता है उनके प्रति. ठीक है ना. तो ऐसे उसके अंदर मैथमेटिक्स में सो डिजायर एग्जिस्टेड ओनली बिकॉज समथिंग वाज फॉरबिडन. और जब तक फॉरबिडन है तब तक ही वो डिजायर रहेगी. एंड व्हेन द परमिशन वाज गिवन द डिजायर डिसअपीयर्ड. एंड दिस इज हाउ द ये जो होता है ना प्लम्बम होता है, ऐसे होता है. अभी उसको समझाया होगा घर वालों ने कि यार नहीं जमता है तू छोड़ के आ जा. नहीं 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 मैं करके देखेंगे. फिर घर वाले ने बोला जा कर, तेरी काशी कर, 3-4-5 साल बर्बाद कर, उसके बाद में कोविड आया, फिर आ जा, अब हो गया तेरा, ठंडा हो गया तू, चल आ जा अभी काम कर. और इसीलिए अभी उसका जिंदगी जो था उसके अंदर के जो एवोल्यूशंस थे वो सभी चीजें निकल. अब बुढ़बुढ़े जो थे वो सभी हवा होके निकल गए. अभी सिर्फ वो घर के अंदर उसको एक ही चीज में चलना है, एक ही रास्ते पे चलना है, वही रास्ते में उसको ढाल के देना है. दिस इज हाउ द प्लम्बम्स लाइफ एग्जिस्ट. तो ग्रैंड जॉर्ज ने और अच्छे से लिखा है इसको. जीरो टॉलरेंस फॉर द कंस्ट्रेंट, नो एबिलिटी और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिस्ट्रिक्शन एंड द लिमिटेशंस. प्लम्बम का नेचर ही वैसे होता है कि मेरे को रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस नहीं चाहिए. ठीक है ना. आई विल स्ट्रेच माई सेल्फ टू द एंड. ये चीज रहती है, जिद रहती है. ठीक है ना. ऐसा नहीं एम्बिशन रहती है, जिद है. ठीक है. सो एवरीथिंग सीम्स अ न्यूसेंस टू द प्लम्बम इंडिविजुअल हु बिकम्स अ ग्लूमी, टैसिटर्न एंड डिप्रेस्ड. ठीक है. In our increasingly complex society, constraints and obligations are growing from day to day. अभी क्या हो रहा है, दिन ब दिन आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग रही है. In addition, lead pollution has reached the significant level. To accept this level of the civilization, which is more and more constraining, one must have to aplomb. कैसे होना पड़ेगा, आपको मंद होना पड़ेगा. Otherwise, you may just like feel like plumb, crazy, and escape into the infantile and irresponsible behavior. The future, the somebody else problems. जो है वो देखा जाएगा, जो आगे क्या होगा देखते बैठेंगे, बाकी देखेंगे, मैं क्या देखूंगा. तो ऐसे वाला जो बिहेवियर आता है वो प्लम्बम कहता है. प्लम्बम will allow the children to tolerate the constraint of a school, even those who have been labeled as a problem child and who has not been sent from school to school for the lack of discipline and interest. So बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि यार जो प्रॉब्लम चाइल्ड करके पहचाने जाते हैं और वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजे जा रहे हैं. उसका स्कूल चेंज होते जा रहा. तो वहां पे आप प्लम्बम के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं. ठीक है. सो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है. कभी हमने सोचा था कि ये प्रॉब्लम चाइल्ड्स के लिए भी प्लम्बम हम सोच सकते हैं. तो वर्मिलियन का आगे लिखना है. एटीट्यूड एंड रिगार्डिंग द बिहेवियर, निगार्डली इन द गिविंग प्रोमिसेस, दे स्क्रूपुलसली ऑब्जर्व दोज व्हिच दे हैव मेड. दे आर बाउंड बाय देयर वर्ड. द love of independence is theirs in the highest degree, but the reason and will not enable to submit to the most rigorous disciplines. अब देखो, इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं. और क्या होता है, बट द रीजन विल इनेबल देम टू सबमिट टू देयर मोस्ट रैगरेट डिसिप्लिन. अगर आपको मतलब किसी के अंडर रहना है तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा.
सो दे आर द स्लेव्स ऑफ देयर हैबिट विच दे ट्राई टू परसीव। यही चीज होती है सबसे गलत उनकी जिंदगी में, ठीक है। मतलब जो उनकी जो हैबिट्स होती है उनके वो गुलाम में होते हैं, और उसकी वजह से, और वो कोशिश करते हैं कि उसको, अब कोल्लू का बैल जो है उसको पता है यार मैं कहीं तो भी जाऊंगा नहीं डिस्टेंस, बट ही इज रिवॉल्विंग इन द सेम डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। तो जैसे एक रोबोट होता है, उसको एक लाइन खींच के दी होती है, वो रोबोट वैसे ही जाएगा और वही लेवल में काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे वाला इसकी जिंदगी हो जाती है। फ्रेंड ऑफ सॉलिट्यूड, फोज ऑफ नाइस, दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड लाइव अलोन। और क्या उनकी जिंदगी में क्यों नहीं एनोए आएगा? बोल, ये तो बोल रहा है आफ्टरनून में, मैं तो बोलता मॉर्निंग में आना चाहिए इसको एनोए। ऐसे लोग हैं, ठीक है। सो शनिंग इन द एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड दे डिस्पाइस, taciturn or deliberately silent, surly and dejected, quick to see the worst in everything। कोई भी चीज में साला बुरा ही देखेंगे, ठीक है। साइलेंट रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। एंड टू डिटेक्ट इल विल इन द अदर्स, दूसरों के अंदर हमेशा के लिए बुराई ढूंढेंगे। टू बिलीव देमसेल्फ परसिक्यूटेड, डिस्ट्रस्टफुल एंड सस्पिशियस। ये वर्मोलेन ने लिखा, बहुत ही अलग शेड है, कभी मिला तो यूज कर लेना। एंड दिस इज हाउ I understand the plumb bound metallic। Thank you for your patiently listening। So जब भी हम कोई दवाई को समझते हैं तो कोशिश करो कि यार उसका एक सही तरीके से अंडरस्टैंड करो, उसके पूरे रुब्रिक्स को पढ़ो, और जब आप उसके पूरे रुब्रिक्स को पढ़ेंगे तब जाके यार आपको क्लिक होते जाएगा। उसके साइड बाय साइड उसको आपको अलग शेड अलग अलग शेड भी मिलना चालू हो जाएंगे। और यही जो होता है हमारा मतलब मास्टर के टीचिंग का एक खासियत था। यार मास्टर क्या करते थे, जब वो रेमेडी को पढ़ाते थे ना, तो हम अलग अलग एंगल से वो दवाई को मतलब यूज करने के लिए मतलब कैपेबल रहते थे। और मुझे यही सबसे खास बात लगती थी मास्टर की टीचिंग की। सो दिस टुडेज लेक्चर वाज डेडिकेटेड टू द मास्टर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सब लोगों का जो प्यार होता है ये बहुत बहुत एनकरेज करता है मुझे, ठीक है। कभी प्लम्बो वाला सिचुएशन नहीं आता मेरे को आप लोगों के साथ में जब रहता हूँ, ठीक है। मेरे हार्ट के मतलब जब आप लोगों के साथ में होता है, वो जब रेमेडी को पढ़ने की बात आती है, कुछ शेयरिंग की बात आती है, तो हार्ट जो होता है वो फटाफट काम करना आता है, जिसके अंदर का जो स्लगिशनेस है पूरा निकल जाता है। इसीलिए तो प्लम्बम जो होती है वो दैट इज रेमेडी फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस। क्योंकि क्या करती है ना, वो सर्कुलेशन को भी ब्लॉक करती है। जब सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देती है तो आपके जो ऑर्गन्स है वो सुस्त होने वाले, ठंडे होने वाले, शांति से रहने वाले, आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर बैठे बैठे क्या खाली दिमाग है, शैतान क्या करे, सोच लो कुछ भी, ठीक है। यस, आई थिंक होप कि आपको So one small query. Yes. So one small query here. Yes. Even Lacasis, how do we do DD with Lacasis? Because even Lacasis is fun-loving, wants to travel, Yes. and loves to be with friends, and loves to desire change. And Submission. forbidden, this rubric forbidden things wala is in sync with inhibition of Lacasis. कैसे? So because Lacasis also falls sick once it's prohibited from doing all the fun-loving activities. हाँ, तो फन लविंग रहता है ना, तो फन लविंग एक्टिविटीज अलग बात होगी। लैकेसिस को फन लविंग प्रोहिबिटेड कर, मतलब उसको अगर बोल दिया जाए कि आप ये ना करो तो रुकेगा क्या वहां पे? वो सैक्रिफाइस करेगा क्या? लैकेसिस को रोकना इतना आसान है क्या? अब सांप को बोलो कि यार आप ये घर से बाहर नहीं निकलने का, ठीक है, तो क्या होगा? तो मेरी सासू माँ आ गई। तो लैकेसिस रुकता नहीं है, लैकेसिस को रोकना नामुमकिन है। प्लम्बम क्या है ना, वो रुक जाता है, कुछ देर तक रहेगा उसका स्पार्क, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है, वही रूटीन के चक्कर में जब फंस जाता है तो प्लम्बम को वो रूटीन के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है।
जब भी बाहर निकलता है तब जाके मजा आता है, लेकिन उसको पता है कि यार फिर से मेरे को जाना है वही चक्कर। तो लैकिसिस ऐसे नहीं होता है, जो चीजों में उसको मजा नहीं आता ना वो चीजें छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कुछ लोगों की कंपनी उसको बोरियत लेंगी तो वो छोड़ देगा वही। दैट्स व्हाई द लैकिसिस हैज अ लॉट ऑफ फन। तो हर एक मूड के लिए उसके पास में अलग से दोस्त रहते हैं, तो उसको पता है यार ये मेरा मूड ऐसे खराब हो गया है तो यार मैं कौन से दोस्त के साथ में मुलाकात करूंगा तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। समझ आ गया? दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्रेंड्स इन केसेस ऑफ द प्लम्बम एंड इन केसेस ऑफ लैकिसिस के अंदर वो फन लविंग पार्ट होता है। और प्लम्बम के अंदर क्या है ना कि रोज मतलब कि वही आता है। अभी कुछ दिनों के बाद में दोस्तों के भी बोर हो जाएगी, जब वो वही दोस्त उसके जिंदगी में वही आते रहेंगे, सवेरे उठे हाँ क्या होगा, अरे क्या कर रहा है, काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, शाम में आके इकट्ठा बैठते थोड़ा सा बियर पीते बस जाते घर पे जाते, वही रूटीन। तो उसको कुछ दिनों के बाद में उसमें भी मजा नहीं आता। तो प्लम्बम को हम सबसे ज्यादा पकड़ पाते, मतलब ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाते इनोई के स्टेट में, हम सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। मैक्सिमम लोगों को इनोई के केसेस में ही प्लम्बम मिलता है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट स्टेट था, मतलब वो जॉब, मतलब उसका जो काम था, मतलब एक फीलिंग जो काम था, वहां से आके ये एक चक्कर में जाने की तैयारी में है, अटकने की तैयारी में है। यहाँ पे प्लम्बम को हमने पकड़ा। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अब बनने का है बस। वो क्या होता है, मजा आता है, मतलब वो शांत रुतबा ये वो चीज रहती है, वो अलग बात। तो प्लम्बम को क्या होता है कि नहीं यार मेरे को बनने का ही है, मेरे को बनने का ही है, मेरे को बनने का ही है, तो बनने का है, उसी में वो लगे रहता है। फिर क्या होता है ना कि यार उसको स्पार्क ही नहीं पता, उसके अंदर के एम्बिशन ही नहीं पता, उसकी क्या ड्यूटीज रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं पता है। तो वो जो काम होता है वो काम काम के जैसा ही रहता है, उसमें कुछ थ्रिल नहीं रहता है, इसीलिए चक्कर में फंसे जाता हूँ। समझ आ गया? इधर क्या है, मजा ही मजा है, और एक जगह में मजा नहीं है, एक जगह से नहीं मजा आ रहा, दूसरी जगह पे जाओ, तीसरी जगह पे जाओ, चौथी जगह पे जाओ, जगह पे चेंज करते रहो। लेकिन इसका क्या है, एक ये कभी ये गोल गोल घूमते रहता है, टेंजेंशियली दोस्त मिलते फिर से आता है, फिर से चक्कर में लगे रहता है, ठीक है। फिर से टेंजेंशियली दोस्त मिल गए, हाँ वहां से आ गए, फिर से चक्कर में लग गया। एंड दिस इज लाइफ ऑफ द प्लम्बर, ठीक है, ओके। Yes, sir. Thank you Lot so of much. senior mentor is listening. If anybody added something, हाँ, हम अगर सब किसको ऐड करना है तो प्लीज ऐड कीजिए, ठीक है। तो प्लम्बम को मैं अकेला ही फिनिश नहीं कर सकता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ केसेस एंड एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग रेमेडी। तो किसी के भी कुछ होंगे एक्सपीरियंस तो प्लीज शेयर कीजिए। So when we confront plumbum in our OPDs, we हाँ, usually prioritize things on the basis the patient usually evades his look. अच्छा, तो Why क्यों क्यों everything? करती है, वाई ही विल स्लीप, ठीक है ना, मतलब व्हाट ही वाज ड्रीमिंग, ठीक है ना, दैट ड्रीम्स वर नॉट अकम्प्लिश्ड, दैट रिमेन्स अ castles and palaces for you। Yes, sir. He has हाँ, great thoughts of career ideas, but he doesn't really meet up to his own expectations. that are only the thoughts, not the ambitions, that's all। Yes, sir. Yes, सर एक डाउट है मेरा कि सर वो प्लानिंग yes, प्लॉटिंग yes, yes। जो प्रिपरेशन करता है सर, जो भी जिस भी एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करता है, तो सर उसके लिए प्लानिंग करता है कि बस वो उसका डेली का करना है बोल के? सर उसमें दिमाग तो लगाता वही है है, सर, तो इंटेलिजेंट क्या नहीं है हो, सर। अभी समझो फॉर एग्जांपल अगर आपको फेलियर्स आता है, ठीक है, तो आप एलिमेंट्स में जाएंगे, उसके बाद में आप सोचेंगे कि यार मुझे क्या करना है। अगर आप फेलियर से कुछ सीख ही नहीं रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम दे रहे हो ना, उसको रिपीट कर रहे हैं सर। बस रिपीट करना है सिर्फ। ओके सर। हाँ, तो वहां पे वो जो इंतु होता है कि यार मुझे अगर कुछ स्पार्क मिलता है तो वो अलग बात होती है। ये सिर्फ उसके सर्कुलेशंस को सही ठीक करने के लिए सभी चीजें कर रहा था। उसमें अगर कुछ स्पार्क रहता था, एम्बिशंस रहती थी, तो जो ये रहता है, सिर्फ डिजायर हो के मतलब नहीं होता है ना। इच्छा तो मेरी बहुत है यार कि मेरे पास में मर्सिडीज हो, लेकिन वो उसके रिगार्डिंग उसकी तरफ, मर्सिडीज की तरफ वो चल के आएंगी मेरे तरफ कि मेरे को थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा।
अपने आप तो थोड़ी चल के आएंगी, मेरे को जाना पड़ेगा उसकी तरफ। प्लम्बम को सिर्फ है नहीं, वो सिर्फ सोचते रहेंगे प्लम्बम, वो मतलब मर्सिडीज में बैठा हूँ, ठीक है ना, वो शेख चिल्ली पेड़ के ऊपर बैठा है, ठीक है, और फिर एक लकड़ी तोड़ूंगा, जाऊंगा, अंडा लूंगा, फिर अंडे से मुर्गी आएंगी, मुर्गी से और अंडे आएंगे, फिर अंडों से और मुर्गियां मुर्गियां मुर्गियां, फिर ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा, और धड़ाम से गिर जाता है नीचे इन आफ्टरनून। ठीक है, दिस इज हाउ द प्लम्बम वर्क्स। ओके, किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। हेलो सर। यस हेलो यस, हुसैन भाई। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है कि एनालिटिक थिंकिंग वो रखता ही नहीं है और हर चीज को वैसे ही रोबोटिक और बोरियत अंदाज में लेके आ जाता है। हाँ, मतलब उसकी जिंदगी में नया कुछ नहीं है ना, तो वो एक ही रूटीन में घूमते जा रहा है ना वापी, तो इसकी वजह से उसके अंदर का एंथु जो होता है वो रहता ही नहीं है। और फिर वही बोरियत आएगी, सभी चीजें आएगी, उसको मजा नहीं आएगा उसमें। ये चीज को आपको समझ। ओके, अभी हेलो आपको सर। बहुत। सर जो वो हाँ यस ऑब्स्टिनेट सर। कॉन्स्टिपेशन और जो इन लाइक हाँ अभी अभी आपका फिजिकल कंप्लेंट जो है ना वो तभी मिल जाएगी, समझ में आ हाँ गया। वो हाँ, हर्निया में जो कैसा है इन्फेक्शन कॉन्स्टिपेशन होता है उसका? वो। कॉन्स्टिपेशन कैसा है उसका? हाँ एकदम उसका भी हार्ड है ना सर, एकदम स्टूल हाँ एकदम तो से मतलब, लाइक हाँ बॉल्स छोट छोट, मतलब उस टाइप का होता है कि जहाँ पर आप बहुत सी चीजें रोक के रखते हो और उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हो, और पानी भी, जैसा पानी इज लाइफ एंड फ्लो, तो वो भी कम होता है उसमें, दोनों बातें हैं। यस, तो ऐसे वैसे आप लोगों को फिजिकल कंप्लेंट्स पढ़ो, डिप्लोमा के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यस हुसैन दादा बोलो, कुछ तो भी बोल रहे थे यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे मोंटी सर का, जो सेलिब्रेशन आप। चल रहा है। थैंक यू और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर। आपने आप लोग किया सेलिब्रेट, तो मैंने सोचा मैं शाम को करूँ। बढ़ाने वाला शाम में खाते हैं सर, अच्छा रहता है। उनके साथ में बैठने का समय शाम का ही रहता था। हाँ सही सर, सही सर, बहुत खूब। प्लम्बम के बारे में कहना था तो एक किंग सीरीज है, सिक्स सिक्स रो का है। अगर पीरियोडिक टेबल में इसको देखिए, इसकी जगह कहाँ बनाई गई है ना, सिक्स सिक्स है। औरम सीरीज, किंग सीरीज, उसके अंदाज इसलिए है मतलब एक किंग टाइप ना, कि मैं कैसल देखेगा, क्या हाँ देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं राजवाड़े देख रहा हूँ, महाराजा हूँ, मुझे ये करना था, मुझे वो बनाना था, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है आपके, फसाड़ है वो सब सारी चीजों का ना आपके पास। तो वो मूंगे कैलकेरे जैसा लगेगा आपको। हाँ, वो कैलकेरे की तरह दिखेंगे वो लोग अपने। यार ये तो सब ऐसा खोखला है यार, ये तो उसको खुद को पता रहता है कि लोगों में। स्टेज 14 का है, स्टेज 14 में है। ऊपर से अगर आप कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो स्टेज 14 में है, एंड अगर रो के हिसाब से देखेंगे तो किंग सीरीज में है। हाँ ऐसा बादशाह जो खोखला बन गया है, इसके अंदर कुछ दम नहीं रहा, अब बस निकलने वाला है, दम टूटने वाला है बस, अब वो ख्याली पुलाव। है। क्योंकि कॉलम कॉलम 15 में अगर आप जाते हैं, जस्ट कॉलम 14 के बाद अगर आप 15 में जाते हैं, तो वहां पे महाराजा सल्फर बैठे हुए हैं, फिलोसोफर, हाँ ग्रेट फिलोसोफर। सब वो ये नॉस्टैल्जिक इवेंट्स, वो यादें, बस यादें रह गई, अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, प्राइड और यादें रह गई। और मेटल है तो मेटल की आपको वो दिखेगी, क्या कहते हैं कि प्राइड दिखेगी आपको, मेटल जल्दी झुकता भी नहीं है ना, और दिखाने का तरीका एक है, और अंदर से खोखलापन है। बस यही पे फेल्यूर है उसके, कि नहीं अब नहीं होने वाला, अब मैंने इतने एग्जाम्स दिए, अब नहीं होने वाला कुछ मेरे से। लड़की यार अच्छी लगती है, करूँ क्या, होमोसेक्सुअलिटी तक जाता है। अरे सेक्सुअलिटी तो बहुत है, किंग सीरीज है, कॉलम रो 6 की सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वो इसलिए वो चाहता है कि मैं यहाँ देखने जाता हूँ, लड़की देखने जा रहा है, पहले तो नहीं नहीं लगता है, नहीं 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 चल अब क्या करूँ, लेकिन वो देखेगी मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, क्या बोलूंगा। तो ये आपके केस के अंदाज से काफी काफी अच्छा लगा कि यार ये बंदा तो था मजे वाला बंदा, ये था हाँ तो ये इसमें जुनून था, लेकिन वो उस हद तक अपने आप को खींच नहीं पाया, यस इसलिए यस। कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिला। दैट इज द gist of column 14 and row 6. थैंक यू सर, थैंक यू once again.
थैंक्स लॉट सर एक किशन तो भाई। शेयर करना चाहता था। यस हेलो यस सर, यस यस नरेन सर। प्रमम का एक और सिंगल रूब्रिक है, यस रीडिंग इज डिफिकल्ट, स्किप्स लाइन्स। माने वो, ये है नहीं वैसा बंदा जैसे आपके हाँ केस में भी था कि वो हाँ दिख रहा था एम्बिशन, लेकिन वो पढ़ रहा है, लेकिन वो स्किप कर रहा था, पोस्टपोनिंग हाँ एवरीथिंग। एक के बाद दूसरे दिन में, दूसरे दिन के तीसरे, इसको वो मजा नहीं आ रहा है। मजा ये नहीं वो जो चाह रहा था, एनयू वाला बंदा था। सही है तो सही है। बहुत ही जबरदस्त केस है। तो वो सिंगल है सर, रीडिंग यस इज डिफिकल्ट, स्किप्स लाइन। टिप्स लाइंस। यस बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग। ये मतलब ये मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। तो कोलंबम का स्टडी करने के लिए बहुत हालांकि समय सर लगा। उसकी एज भी बहुत कम थी, 29 ही थी। यस 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 यस। हाँ, तो लाइक उसके पास तो पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसने एक पर ही ये करके ये प्रेफर कर लिया। ओके। तो वही वो अगर दूसरा जो केस मेरे दोस्त का था, तो उसके फादर आते थे मेरे पास में, बोलते थे यार उसको पहली लड़की है, उसका भी टेंशन है, उसकी शादी भी करने का है, तुम्हारे दोस्त को कुछ समझाओ। मैं उसको बोलता था काका रुको ना यार, तो सच्ची में वो लाल दिए की गाड़ी में घूमेगा, डोंट वरी। तो उसने वैसे ही किया, 4 साल तक वो टोटल फैमिली से दूर रहा। ठीक है। एंड मतलब हिज वाइफ सेक्रीफाइस हेड्स ऑफ। वो मतलब वो खेत में जाती थी वो बाकी लोगों की फैमिली के साथ में, क्योंकि वो पता है उसको कि यार हस्बैंड जो है वहां पे गया, तो यार मैं जिसके भरोसे यहाँ पे शादी करके आई हूँ, तो वो बंदा उधर गया, तो एम्बिशन क्या होती है वो देख। तो उसकी बीवी ने भी उसको सपोर्ट किया। तो जब भी वो मतलब उसने उसके जो लाइफ स्टोरी बताया कि यार जब भी वो बीवी बोलती थी कि यार वो मेरे लिए लेके आ जाओ, तो इसके पास में पैसे नहीं रहते थे, ये लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ, तो कुछ नहीं, ये सिर्फ बेटी के लिए सिर्फ पार्ले जी का पूरा लेके जाता था। तो जब वो चीजें उसने बताई मेरे को, तो मेरे को भी बहुत इमोशनल हुआ कि यार नहीं सही में अभी जो तू जो लाइफ जी रहा, दैट इज द मार्क्स, ही इज क्लास 1 ऑफिसर नाउ। तो एम्बिशन वो होती है, देखे ना, आपको चाहत चाहिए होती है, वो चाहत ही इसके अंदर खत्म है। सिर्फ मुंगेर लाल के हसीन सपने हैं, वो कुछ पूरे नहीं होते भाई, सब लोगों के नहीं होते। ठीक है। सो ऐसे वैसे हम प्लम्बम को आसान भाषा में समझा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। वेरी थैंक्स नाइस। लॉट। और हो सकता है सबको समझ में बहुत ढंग से आया होगा। एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग सर बैच। ये बैच का 20 का कैपेसिटी था, लेकिन अभी तक लगता है 20 तक गया है, और 2-3 इंक्वायरी और आया है। एक एक मैसेज है कि सर का बैच होके हफ्ता हो गया है, सर का भी सेशन चालू है, मैथमेटिक्स का सेशन चालू है। तो जो लोगों को अभी भी ज्वाइन करना है, 1-2 दिन में ज्वाइन करो, क्योंकि सेशन बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो एक दो, दो कल कल वापस हो सकता है, कल परसों सर का सेशन चालू होगा, तो उससे ही पहला आज जो का लोग लेक्चर था, इंटरेस्टेड रहेगा आज काइंडली का ज्वाइन। हम्म, आज का लेक्चर था, लेकिन मास्टर के लिए आपने बर्थडे के लिए उसको पोस्टपोन करना बहुत जरूरी था। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर ओवरवेलमिंग लव। एंड बस सही में बैच फुल हो गया, मतलब डे, मतलब आप सब लोगों का प्यार ही इतना है, 2 तारीख को अनाउंसमेंट कर दिया और 13 को बैच फुल हो गया था। और अभी भी मतलब 6 लोगों को एडिशनल लेना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी जिनको लेना है वो अगली बैच में लीजिए एडमिशन, तीन ज्यादा लोगों बेहतर का और इंक्वायरी है, 3 लोगों का इंक्वायरी और है। तो जो लोगों को ज्वाइन करना है, 1-2 दिन में ज्वाइन करो, ज़्यादा लेक्चर मिस ना करो। थैंक यू है। यस सर, एंड थैंक लॉट। यू थैंक्स। ऑल। थैंक यू लॉट। गुड नाइट।